नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है कहां पर? हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी दीपावली सुखद हो, खुशहाली हर जगह पर हो। आज तो वैसे नरक चतुर्दशी भी है। ये कहा जाता है कि उस वक्त आप जो भी पूजा करें, पाठ करें, मंत्र करें, जाप करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, हर चीज की पुष्टि हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। आसाराम बाबू तो कहते हैं, अब पता नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, दीपावली के उत्सव पर पूरा देश एक हो जाता है। हर जगह से बेस्ट विशेष आती हैं। मतलब प्रदीप जी, जिन लोगों से आपने बात भी नहीं करी होती पूरे साल में, वो भी आपको बेस्ट विशेष भेजते हैं। एग्जैक्टली सर। हैप्पी दिवाली हर एक को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हैप्पी दिवाली। आई होप दिस विल बी इंडीड अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत को, पूरी दुनिया को हैप्पीनेस की बहुत जरूरत है। भाई हमारी तो एक ही विश है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी खुद की, मैं अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरे दिल के अंदर तो सिर्फ एक ही जिज्ञासा है कि किसी भी तरीके से जो हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स कतर ने जिनको मृत्युदंड दिया है, उनको माफी मिल जाए और वो भारत आ जाए, सुरक्षित स्वदेश लौट आए। मैं तो सिर्फ इसी बात की प्रार्थना करता हूँ। यस बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ऑफिसर्स। दे हैव, जो भी है, दे हैव सर्व्ड द इंडियन आर्मी, द इंडियन मिलिट्री। Even though from the Navy, it's a part of the entire military establishment. And the government, and today we are a superpower. We are a power that can talk, dictate terms. So we should use our bilateral relationship and multilateral relationships across the world to see that our officers come out. Because definitely they're not spies. They have been caught in some web and web. It's a conspiracy. It's a conspiracy. So we need to see that they are safe back, and as you said, we have a relationship with Qatar which says that the punishment there can be taken here also. So the thing should work out, and we hope it is working out, because we have not heard much adverse reports about what happened to the officers after that. So probably our External Affairs Ministry has worked out very well and things are under control. I hope so. I really and truly hope so. Bilkul sir. I hope it happens. Well, at the moment with us from the BJP, you were saying something? Sorry. No, yes, you can go ahead. Yeah. At the moment with us from the BJP, our very old, very dear friend, Mr. Ali Daruwala from Pune. Daruwala Sahab, namaskar. Good evening, Rajiv sir. Good evening, Pradeep sir. Happy Diwali to you. Sir, happy Diwali to you. From the entire staff here at Nation Now. Happy Diwali to you. To you, to your entire family, to all your friends, and to all your girlfriends. Daruwala Sahab. Thank you, Rajiv sir and Pradeep sir. Daruwala Sahab, ये बताएं, आज की तारीख में 2 या 3 चीजें हुई हैं. There are 2 or 3 things which have happened. A, there seems to be a conspiracy against Mr. Devendra Fadnavis. People from everywhere, all sorts of people are trying to undermine his achievements, and very conveniently in this reservation imbroglio, they've forgotten that he's the only chief minister who was actually able to grant reservation to Marathas, which was upheld by the Bombay High Court. You know, and the amount of sincerity he has shown, the sacrifice that he has made. I mean, how can you ignore that? And we have people today who are talking all sorts of nonsense with regard to Mr. Devendra Fadnavis, which is terrible. Daruwala sir, please. Can you hear me, sir? Yeah, your voice had gone in between. Now can you hear me? Now can you hear me, sir? Perfectly right, sir. Right. So what I'm saying is, Mr. Devendra Fadnavis happens to be the only chief minister in Maharashtra who was able to grant reservations to Marathas, which was upheld by the Bombay High Court. No other chief minister has succeeded in doing that. Can you hear me now, sir? Yeah, perfectly all right, sir. Right. So why are people out to undermine him?
Mr. Darwal. Yeah, am I audible to you, Pradeep sir, Rajiv sir? Yes, You are very audible, sir. very much. Please go ahead. Yeah, this conspiracy which has been hacked against our ex-Chief Minister and the now Deputy CM Devendra Fadnavis ji is the only example, a living example, the prominence and the good work done by him, and that they say he's going to steal the limelight and the reservation embargo that is happening in Maharashtra is going to be settled sooner than expected. Now, as you see what happened, the development that has happened in Maharashtra, that the Jarange Patil, who sat on the Please go ahead. which was called the fast, and he was asking for that Kunbi reservation, which during the time of the Nizam Empire was given to a certain sect of people, where 11,500 such certificates were given, and those were accepted and recognized by government of Maharashtra. In such an incident, these people realized that somehow if they can get this reservation from the Nizam government and the documents that they could find in Urdu, in Persian, and whatever the language that was available, a commission has been set, and now this has sent jitters across the Maratha community. It is kind of a fight between the two communities, and to counterbalance this, who is a very tall Neta in Maharashtra, Honorable Chhagan Bhujbal sir, has stood up against. He said he has realized if the Marathas enter the OBC domain, their numbers will get diluted, and it will be a fight between the community itself, and the total agitation will be diluted. So you see what is happening in Maharashtra, which is the natural phenomena and not the dirty politics as it has been portrayed by certain people. No, it is not knee-jerk reaction. It has been surfaced, and the architect behind getting the resolution for the Maratha reservation agitation is Honorable Devendra Fadnavis sir. Yes. This has been going on for last 25-30 years, but there was never a solution. All we have seen is people bhadkawing the situation, getting the Marathas to agitate more and more, and to a certain extent, as we saw a few days back, it had even turned violent. There was arson all over Maharashtra, burning of buses and damage to properties. And what Bhujbal sir said as to if there has been damage to property, you cannot take the cases back. No matter what the deal has been struck, the government of Maharashtra cannot take cases back because it is damaged and it is loss of life and property, sir. So as you see, this Maharashtra ke andar jo agitation which has been going on has taken a different turn, and we are going to see a very, very interesting outcome out of this thing, and this will be solved once and for all, sir. You know, Darwala Sahab, Bajaj Sahab was saying why the attack on Devendra Fadnavis. Supriya Sule continuously telling, as we always discuss, she's saying Mr. Fadnavis has betrayed the Marathas, Mr. Fadnavis has betrayed the Dhangar community, Mr. Fadnavis has betrayed the Lingayats and the Muslim reservation also. The Muslims also, yes, Muslim reservation cold storage mein dal diya. That is what Supriya Sule is saying. Everybody is gunning. The law and order collapse. Supriya Sule says there is a law and order collapse and the Home Minister doesn't know what is happening. Not only she, you know, Balasaheb Thorat, the Congress leader, he said what is happening in jails. Jail se kaidi log bhag rahe hain. और जेल में आते जाते लोग जो कैदी हैं पुलिस ऑफिस को ब्राइब कर रहे हैं. Probably he's talking to the drug mafia, Lalit Patil. So he says both the entire opposition is gunning for Devendra Fadnavis ji. Now how do you see Supriya Sule, Balasaheb Thorat, all the senior leaders of the opposition are saying that Fadnavis should resign? Darwala Sahab. Pradeep sir, setting the record right, if you allow me to elaborate Yes. on this particular what Supriya Sule has said, I am saying she is diverting the attention. In fact, rather than appreciating what Honorable Devendra Fadnavis ji has done, I am the witness to what Honorable Devendra Fadnavis ji said. Coming on the drug mafia case, I would want you to listen very carefully, sir. The convict who had escaped, Lalit Patil, within 10 days, he was apprehended. The culprits in that involved were the Shri Seva Bank people in Pimpri. I myself have asked for an inquiry in that scam. The money rooted in the
banged in Pimpri Chinchwad through Amar Mulchandani, his driver, Vinay Arana, and Sagar Suryavanshi. Trains have been established. I myself have given a letter of inquiry to Honorable Devendra Fadnavis ji, and everything, as he said, दूध का दूध, पानी का पानी, सब चीज सामने आने वाला है. Heads are going to roll. CID, Crime Branch and Enforcement Directors is going to work on this. Today, I want to update the national television, the OTT platform, that the Dean of Sassoon Hospital, the doctor who was treating Lalit Patil, have been suspended and heads are going to roll. Honorable Devendra Fadnavis ji was very clear and he did not mince with words. He said lots of people are going to be exposed, and the first person who is going to be exposed is the person who was sitting silent in the Congress regime, Amar Mulchandani, and I'm not mincing with my words. You will see trains of people going behind bars, sir. I hope that happens. I really hope that happens. 100%. I assure you on this channel, and I have asked for an inquiry myself with the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra. Because as far as these guys are concerned, they're connected to a lot of people in Mumbai as well. We've been working No on matter, this for a long time. you are very well what you said. The connection, the whatever they're trying to do, Including including a gentleman who has just recently got bail. Correct. I am very aware of what you're saying. I don't want to give names because it's a sub judice matter. Yes. But this connection is not going to be of any use. This is Devendra Fadnavis in Bharatiya Janata Party. We do what we say. And on this same platform, these names that I took, right from Pimpri, Chinchwad, Pune to Bombay, everybody will be behind jail, sir. Wonderful. Now that is number one. Number two. This is the opposition. Well, 1 second, sir. This is the opposition. Opposition is expected to say things against the most powerful politician in Maharashtra today. Let's be very clear. Today, the entire government is being held together by the astuteness and wisdom of Mr. Devendra Fadnavis. There is no doubt on that. But what about Pankaja Munde ji? Why did she have to say this? This was an intelligence failure. The Home Ministry has to be brought to book. Yes, sir. I will agree. See, I don't just totally and blanketly block and defend for the sake of defending. Yes, we are, while running a department, we do make mistakes. Mistakes do happen, but we are the government who accepts and we rectify. If in this Lalit Patil case, if there are more things that will be unearthed, believe me, I will be on the same platform, and I am assuring you, these people will not be spared. Sir, we are talking about the violence which took place in Bid. She was talking not about Lalit Patil, but about the violence which took place in Bid. Sir, this agitation, I'll tell you again, is a mastermind. It is mastermind by very, very senior Fox, who has been doing this for last 20-25 years. Very cleverly, very conveniently, when it suits them, they bring it up. But let me not get into it. Let me get into the results and what solution we can come up. And this solution, the first time that we ever got solution was in the regime when Honorable Devendra Fadnavis ji was the Chief Minister. You are witness to that, sir. Yes. In the court, we could sustain the argument, and thereon it has gone, and it will lead to the courts, and the courts are going to give the most fair decision. Sir, in Ram Mandir, the decision which was not sorted for last 50 years, it was kept pending for their convenience. As you said, this government, the past government, only used things for their convenience. They kept people poor for their convenience. Likewise, this Maratha reservation thing, which I personally believe this reservation is total waste of time. They have kept it for their convenience. It is the educated, when they realize, they see how they have wasted, loss of life. What has happened in Bid is sheer nonsense and waste of time. Well, it has happened. It needs to be tackled. It is not lack of intelligence. It is the instigation of the opposition which has led to this, sir. Darwala Sahab, Narendra Modi Sahab ने कल कहा कि I have strengthened the MSMEs. MSMEs को मैंने मजबूत कर दिया है. And after I did that, we have generated huge employment. He says, look at the amount of 15 crore के आसपास 15 crore हमने employment generate किया है. और उसमें 3.4 crores are women employment that has been generated. That is what Narendra Modi, the Prime Minister, says. But and Congress campaign has been unleashed on Narendra Modi ji and the BJP government by Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi.
उन्होंने कैंपेन चालू कर दिया है, आपने ये क्यों किया? आपने फार्म लॉज लेके आए और फार्म लॉज आपने खुद विड्रॉ किया। आपने जीएसटी लेके आए, वन नेशन वन टैक्स आप कह रहे हो, यू डिस्ट्रॉय द स्मॉल बिजनेसेस, यू डिस्ट्रॉय द एमएसएमईज, डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज, यू डिस्ट्रॉय द स्मॉल बिजनेस, डिस्ट्रॉय द एमएसएमईज। 2000 रुपीज नोट आप लेके आए थे और आप ही के कार्यकाल में उसको वापस कर दिया है। Here Prime Minister talks about creating 15 crore jobs, employment, and here Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi says everything that he did, आपने क्यों किया? दारूवाला साहब। Pradeep sir, answering to your question straight, I am really amused. They are stuck to that figure 2 lakh jobs. Sir, this 2 lakh jobs that they are seeking, I can assure you, sir, this 15 crore people who have availed the benefits of MSME have become job givers. These people who are seeking jobs have become self-employed. I can say with total, with conviction and commitment, they are running their own businesses. Sir, the thelawalas are getting 10,000 rupees loan without any guarantee. Sir, I know people, I have spoken to people on the road, they have bought like vegetables, they have bought so many things and they have started their own business and they are doing exceptionally well. They are earning close to 1,500 to 2,000 rupees a day and they are blessing the Prime Minister, sir. So this is what a person from Gujarat can do, sir. This is only what a person can do and no other. This is the acumen a Gujarati has, and this man has got success story in the country, sir. There, look at that, how parochial. Daruwala Sahab loves all Gujaratis like himself, absolutely. I agree with you. But I tell you, but you know, I agree with you. The point is over here, there is no argument. Where is the argument? And now I believe there is a whole new economic push coming from the Prime Minister and from Mr. Amit Shah. But before we go into that, I want to know just one small thing. I don't know whether you are aware. Daruwala Sahab, you can hear me? Am I audible? Totally. Right. Yes, so today Mr. Uddhav Thackeray had gone to MUMBRA after I think years and years and years, after decades, because Sena Shaka, Shiv Sena Shaka, which was allegedly illegal, had been demolished. And a huge crowd was there to welcome him. Mr. Jitendra Awad was there, he was there. Now he has challenged the Chief Minister, he has used words like Mard ka bachcha and stuff like that, and वो क्या है, वो क्या धोखेबाज, traitors वगैरह वगैरह वगैरह, and stuff like that. घटना वाहिर सरकार, खोके सरकार and what not. What's going on? I mean, do you see this thing gaining momentum, or was this just a flash in the pan? Sir, as I say, you know, I always go very soft on Uddhav Thackre's Sena Bhavan. The only joke over here is Sanjay Raut, who has misguided Honorable Uddhav Thackeray, sir. That man has really been misguided, as we always know that the old fox is the main culprit behind all this nuisance. But sooner or later, I hope and pray this fiasco, this turmoil, this drama comes to an end, and Uddhav Thackeray, who has fought shoulder to shoulder, today in fact is a very positive day as to the dates for the inauguration of the Lord Ram Mandir, for the Lord Ram Mandir is going to be announced. There is a very, very big function that is going to take in Pune, where it is called the Do Dhage Shri Ram Ke, where the statue of Prabhu Shri Ram is going to be decorated, and the vastra that is going to be put on them, what you said, the bunai is going to be starting in Pune on the 10th of December, and we'll be seeing all the luminaries, the top people coming down to Pune and putting 2 stitches on the dress. And that dress, that particular robe that will be prepared will be donated to the Lord Shri Ram. And there is a atmosphere of positivity. To neutralize this positivity, you can see all these small things. As I say, elections are coming close. We should be prepared. As to this small crevices will be seen all over, and we should really not take it seriously and take it with a pinch of salt, sir. Daruwala Sahab, Devendra Fadnavis says, Panchayat to Parliament. You have swept the Panchayat, the Gram Panchayat polls in Maharashtra. Devendra Fadnavis has become supreme leader because BJP is the #1 party, followed by Ajit Pawar and followed by Eknath Shinde. वो जो एक रूमर्स फैल रहा था, एक कॉन्सेप्ट था कि शरद पवार जी के वोट्स 17% will remain intact in spite of the very fact लीडर्स गए, वोट शेयर गए नहीं,
उद्धव ठाकरे जी के लीडर्स गए, वोट शेयर गए नहीं, बट एवरीथिंग इज प्रूव्ड फॉल्स, एवरीथिंग इज प्रूव्ड फॉल्स. लीडर्स भी गए, वोट शेयर भी गए, एंड एज देवेंद्र फडणवीस जी सेज, पंचायत से पार्लियामेंट, the mood of the people of Maharashtra are absolutely clear that BJP and they want Narendra Modi ji as a prime minister in 2024. That is what Fadnavis Sahab says. Now the Congress and the other opposition leaders says AB form to diya nahi hai. How can you say this is party pe khada nahi kiye, aap kaise gram panchayat ko maan rahe ho? This is not the pulse of the people. How do you see it? How do you see it, Darwala sahab? Pradeep sir, Rajiv sir, as you know, this program that we are doing, it is termed as Nau Saal Be Misal, and we are going to counter all this counter allegations, this false, this lies by Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge and Priyanka Gandhi. We are going to counter it with action. We are going to counter it with flagship programs. And what I'm saying, I'm not mincing my words. I give my party 15 years to come in South. I give the party another 15 months to come in superpower in India in the Lok Sabha election. As I always say, Rajiv sir, always he smiles at me when I say that, ab ki baar 500 par. No matter what, NDA government is going to cross the magic figure of 500 this time, sir. Wonderful, absolutely wonderful. I would love to see that. Darwala sahab, I'll be the happiest. I'll be the happiest person in the world if that really happens. बिल्कुल. Yeah, sir, you have been very fair. जय सिया राम सर, जय सिया राम. अगर हो जाता है जय सिया राम. जबरदस्त सर, जबरदस्त. लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, एक चीज जरा उसको जरा सा विस्तार में समझाएंगे सर, ताकि हमारे जो बाकी दर्शक जो हैं वो भी जरा समझ सकें. जो आपने अभी बताया 2 धागे श्री राम के, वो क्या प्रोग्राम क्या है सर, वो जरा बताएं. That sounds very interesting. Rajiv sir, Pradeep sir, actually I am not the right forum to be introducing this, but yes, as a being part of it, there is this very serious RSS functionary called Anaga in Pune. She runs a ashram in Kothur, where we are going to make the robe for Lord Shri Ram. As I always been saying, and I've been very positive on this Ram Mandir issue. I've done so many debates. We have been working on it for last 5 to 10 years with the chief of the RSS and the very major functionaries. We want Jan Bhagidari. The Prime Minister and the think tank always think that every common people like you, me, Rajiv sir, Pradeep sir, should be part of the success story of this country. This party came to power with the promise that we will construct the Ram Mandir, and we are going ahead and we are going to fulfill our promise before we complete this tenure. The robe in which Lord Shri Ram will be decorated is being made in Pune, and that Abhiyan is called Do Dhage Prabhu Shri Ram Ke. Every person, even the Raste Ka Admi, every person is going to walk into our ashram and they're going to fill out the charka twice and going to put one knot, and we have got each and every people, everybody will be traveling down to Pune, and this called I didn't know that. Do Dhage Shri Ram Ke, anybody and everybody. So that no means caste, you're no going to creed, be, no religion. And I, being a Muslim, I'm part of this campaigning. Wow, congratulations sir. Sir, you are blessed. Matlab ke the entire robe which is going to be worn by Ramlala in Ayodhya when the Pran Pratishtha Puja takes place, yes, that sir. robe would have been woven by all the common people all around. Yes sir, yes Wow. sir. Kya baat hai sir, kya baat Yes, sir. hai. So Fantastic. this is called Jan Bhagidari. This is Jan really, Manas, this is really wonderful. Yeah. Really, This is really how wonderful. everybody. Prime Minister Modi, Bhagwan Ram ka mandir ka sthapna, pran pratishtha also is being done by Narendra Modi, our Prime Minister, and he talked about today Bhavya Somnath, Bhavya Kedarnath, Bhavya Kashi Vishwanath, Bhavya Mahakal, or Ayodhya mein Ram Lala, 9 saal bemisal. You know, everything is there, spiritual tourism is there, our spiritual journey is there, but as we are not living development, 9 saal bemisal, or report card, right from surgical strike, Balakot strike, 370, Gar Nal, Har Gar Nal Se Jal, Har Gar Se. I mean, you got a report card, this is fantastic. And then you are also doing things that is the heart of India. Prime Minister Modi has tweeted this today. BJP has been raising this in the social media. So you believe that these things go together for BJP? They can't leave the hardline stand, and they shouldn't.
So, Pradeep sir, I beg to differ over here. This is not called the hardline stand. Sir, it is the population, it is the connect, it is the sentiment. As we talk, you can get goosebumps in your body. 80% of this population in this country is going to get its Kaaba. For us, it is the Mecca where our Kaaba is. Where is the Kaaba for the Hindus? It is going to come up. As I say, this man has given his word. Our party has supported him, and we are going to fulfill our dream. And the Kaaba for the Hindus is coming up in Ayodhya, and it is happening in none other but in the era of Narendra Modi. Isn't it so great? Everybody has worked towards it, and towards the fag end of 10 years, we are going to fulfill our promise, our dream, and it is not the dream of the party, it is dream of each and every citizen of this country. So when the Supreme Court verdict came, even the Muslims accepted it with grace. There was not a single stone pelting in country. It was the way we went and explained to the people, sir, we need to do this. This is where the Bhagwan Shri Ram has come to Janam, and this is where his mandir needs to be there. There's just a handful of troublemongers, and we know from which party they come and how this has always been used for their benefit. But over here, we did not mince with our words, and we are delivering what we have given in our manifesto. Well, this is a larger promise than our manifesto. It is our sentiments attached to it, sir. सर, दो चीज़ें तो हो गई मैनिफेस्टो की. ये तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो ही गया. मतलब मैनिफेस्टो में 3 चीज़ें थी. आरएसएस के ज़माने से, भारतीय जनसंघ के ज़माने से, पता नहीं आपको याद है कि नहीं. यू आर अ वेरी यंग मैन. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर. आई डू. भारतीय जनसंघ के हर मैनिफेस्टो में, विच वॉज कैरिड ओवर बाय द बीजेपी, ये 3 चीजें हमेशा हुआ करती थी. 3 चीजें थी. नंबर 1, रिपील ऑफ आर्टिकल 370, वो आपने कर दिया. कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम मंदिर एट अयोध्या, वो भी हो गया. एंड नंबर 3 वाज द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो वो कब आएगा सर? वो भी आने वाला है क्या? Sir, Uniform Civil Code is almost in its preparation. It's in the pipeline. You will be. I won't be surprised if it's been tabled in the winter session. अरे वाह, but Uniform lovely. Civil Code. Yes, the Uniform Civil Code is not only going to be tabled, it's going to become law very soon. And the most, it's so surprising, the community which was scared has been totally kept out of it, sir. Muslims need not worry for Uniform Civil Code. They have been governed under Muslim personal law, and it has got nothing to do with Uniform Civil Code. This code is, as in Portuguese, as you see, they have been kept out of it. Minority has been kept out of it, and there is no hurdle, and there is going to be no lacunas left in this. And very soon, Uniform Civil Code, education policy, Hindu Rashtra, all that we have promised is going to come through, and nothing is going to be left unturned. We are going to fulfill what we have said. As I always say, BJP जो बोलता है करके दिखाता है. 55 इंच का सीना है वो आदमी का. राहुल गांधी जी बोलते हैं कि I am not Narendra Modi. Whatever I promise, I fulfill. That's what he says. So sweet. He accepts what he is. Darwala Sahib, the Prime Minister Modi himself said that we have done justice for the OBCs, to the OBCs. He says the BJP elected me as a Prime Minister, I am an OBC. He went on to say that 27 ministers in the cabinets and union cabinet are OBCs. 85 MPs are OBCs, 365 MLAs are OBCs, 65 Vidhan Parishad MLCs are OBCs. Now that is what he says. We practice what we preach. And woman reservation, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी 27 साल लोग सोचते रहे. हमने 2 साल में दोनों सेक्शंस लोकसभा राज्यसभा क्लियर कर दिया उसको. Rahul Gandhi says, I have been screaming that justice should be done to 84%. That is OBCs plus SC/ST plus SC scheduled tribe. Rahul Gandhi says, when I say empower the biggest section of the society, Prime Minister says सबसे बड़ा सेक्शन गरीब का है और गरीबों के लिए मैं सब कुछ करूंगा. कभी गरीब के बारे में बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और कभी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं, प्लेस द ओबीसी पॉलिटिक्स. नाउ हाउ डू यू सी दैट राहुल गांधी स्टेटमेंट, दारूवाला साहब? Sir, this is answering straight to what Rahul Gandhi played, the gimmick, what he played, that divisive card of OBC. He said, yes, it's because of the OBC reservation, I got a chance, I was fulfilled, and we have given representation. But on the other side, if you ask for reservation, he is a very strong believer. So am I, a great disciple of what my Prime Minister says. There is no reservation. There are only 2 classes in this country, and I never mince with my words. One is the have and the have not.
the have-not number, the have-not proportion in this country is 80 to 85%, sir, and the people who have is 10 to 15%. And I feel, and my Prime Minister is too on the same wavelength. He says, I am working for the have-not, और ये सरकार गरीबों की सरकार है. ये सरकार का जो मुद्दा है, जो have-not है, उनका ये इंडिया के रिसोर्सेज पे अधिकार तुम और हमसे ज्यादा है, और इसके लिए मैं काम करूंगा और इनके लिए मैं मेरा जीवन समर्पण करूंगा, which I totally endorse, and not for reservation, OBC, BC, totally waste of time, sir. Anyway, that's my personal take and not my party's take, sir. And just like it is your personal view that Uddhav Thackeray ji should return to the India fold. 100%. Adil Darwala Sahab, it's always a great pleasure. It is always a great pleasure talking to you and listening to your insights. Your analysis is usually very, very incisive. One may or may not agree with you, but one can't help admiring A, your sincerity, and the fact that you do not mince your words. Darwala Sahab, thank you very much for joining us, and very happy Diwali to you again. Thank you, Pradeep sir. Rajesh And his sir, profound love for the Prime Minister. Narendra Modi ji ke liye hum, khade hai ekdam, whatever he says. Darwala Sahab. Ali Darwala Sahab, that works. Yeah. Namaskar. Happy Diwali Thank again. you. Diwali Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. That was nice. I didn't know about this Do Dhage Shri Ram ke. I didn't know. Did you know about it? I didn't know. सर वो चल ही रहा है. जनवरी 22 से पहले पूरे देश से अलग अलग चीज निकल के आ रहा है. There's a whole campaign. In fact, they want to paint the whole country on Hindutva lines. Right. Let's ask our friend, Mr. Raju Vagmare, who is joining us now after a long time. Vagmare Sahab, namaskar. Namaste, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Happy Diwali, sir. Happy Diwali to you, your family, and all the spectators of News Nation. Thank you very much, sir. Nation now, sir. Nation now. Nation now, sorry, Nation now. So, Vagmare Sahab, अभी पूना में एक प्रोग्राम चल रहा है दो धागे श्री राम के. वो जो चादर पहनेंगे श्री राम अयोध्या में, उसकी जो बुनाई है वो सारी दुनिया करेगी आकर के. दो स्टिचेस लोग लगा कर करेंगे. इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग मंदिर में पूरे हिंदुस्तान में. जैसे एक ज़माने में वो खड़ाऊ यात्रा हुई थी, फिर उसके बाद वो क्या है वो ईंटों की यात्रा हुई थी, 1-1 रुपए की ईंट बनाई गई थी वगैरह वगैरह. लगता है बीजेपी दोबारा मतलब वापस श्री राम की तरफ जा रही है, राम की शरण में. राम की शरण में तो हम लोग सभी हैं, बट व्हाट डू यू थिंक सर? सर, एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप देखते हो तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक है. राम जी की श्रद्धा और राम जी के प्रति श्रद्धा हर एक की है, लेकिन ये सब अभी नाटक, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए दो धागे राम के हर एक चीज पूरे देश में बात करना और सबको पोलराइज वोटिंग के लिए करना, ये बीजेपी का काम हो रहा है और ये पॉलिटिकली वर्क है. इसमें ना राम जी के प्रति इनके मन में श्रद्धा है, ना राम जी के प्रति इनके मन में आस्था है. ये सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि राम जी के नाम के ऊपर हिंदुओं को कैसे पोलराइज करे, उनको एक तरफ कैसे लेके आए और इस देश को डिवाइड करके वोटिंग के सिलसिले में किस तरीके से हम काम करें. इसके लिए ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते. भगवान को लेके ही ये पूरे राज्य में चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये इनका एक नौटंकी है. राम जी के नाम के ऊपर आस्था के नाम का इन्होंने बाजार बांध दिया है और भगवान को रास्ते पे लेके आने का काम अगर किसने किया रहेगा तो ये भाजपा ने किया है. अभी इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है, अभी इनके पास इन्होंने 10 साल में क्या किया ये बोलने के विषय नहीं है. तो फिर इनके पास बचता क्या है? तो राम जी की शरण में जाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और हिंदू का पोलराइजेशन करेंगे. लेकिन अभी देश की जनता को मालूम हो चुका है कि राम जी का नाम देश की जनता भी लेती है, लेकिन नाम लेके कुछ होता नहीं है. महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राम जी का नाम लेने के बाद भी गैस सिलेंडर का 1200 रुपया भरना पड़ता है. राम जी का नाम लेने के बाद भी पेट्रोल का 100 रुपया और डीजल का 110 रुपया देना पड़ता है.
राम जी का नाम लेने के बाद भी दवाई के दाम बढ़ चुके हैं। तो जनता को ये पता चल चुका है कि राम जी का नाम ये लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए, राम जी का नाम लेके राजनीति करने का कट्टा स्थान भाजपा करती है। वाघमारे साहब, नॉट ओनली राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को तो तय कर दिया है मोदी साहब ने। राहुल गांधी जी का जो कहना है कि मैं जब बोलता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी और को आपको एम्पावर करना चाहिए बिकॉज दे आर द हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज द बिगेस्ट पॉपुलेशन इज गरीब और मैं गरीब के लिए काम करूंगा। ही डजंट टॉक अबाउट ओबीसी। अब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं और बीजेपी ने ओबीसी की तरफ जस्टिस किया है। दे ऑलवेज जस्ट डन जस्टिस फॉर द ओबीसी, द ओनली पार्टी टू डू जस्टिस। वाघमारे साहब, नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का मोदी साहब करने वाले हैं और मोदी साहब अभी हर सभा में बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। क्या आपको लग रहा है पूरा डायनामिक्स चेंज नहीं होगा? बिकॉज एवरीबडी इज वाइंग फॉर द ओबीसी वोट्स इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द बीजेपी, एंड आज पूरे दुनिया देखेगी कि एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग प्राण प्रतिष्ठान फॉर राम मंदिर। डू यू थिंक पूरा 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 जो वोटिंग पैटर्न विल चेंज? हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग पैटर्न? सर, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितनी मूर्ख अपने प्रधानमंत्री समझते हैं। 10 साल में लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके की ढोकलेबाजी और किस तरीके की घोषणाबाजी प्रधानमंत्री करके देश को चुना लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनके प्रति इनके पास ना बुनियादी सवालों के जवाब है। तो इन्होंने क्या किया है? ये राम का नाम लेके सत्ता पे आए, महंगाई का नाम लेके सत्ता पे आए, जो नाम लेके आए इन्होंने तो काम कुछ किया नहीं। आज इनके पास बोलने लायक कुछ भी नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं ओबीसी हूं, इसका मतलब प्रधानमंत्री के पैरों की तली जमीन खिसक चुकी है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से भयभीत हो चुके हैं और इसीलिए ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अरे जैसा इन्होंने बोला कि मैं चाय वाला हूं, कभी चाय तो इन्होंने बेची नहीं। इन्होंने किसको चाय दी वो इंसान इस देश में पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक कोई सामने नहीं आया। जब भी चाय बेची बोल रहे थे तभी वहां रेलवे स्टेशन भी नहीं था, तो कहाँ इन्होंने चाय बेची? वही बात इनके पढ़ाई की है। जो कॉलेज में गए उस कॉलेज का एक भी विद्यार्थी बोलता नहीं कि मोदी जी मेरे क्लास में थे। एक भी स्टूडेंट बोलता नहीं कि मैं मोदी जी के साथ कॉलेज में गया था। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ढकोसले की बात करने वाले लोग हैं। तो ये जो बातें करते हैं ओबीसी ओबीसी की, तो जात न्याय जनगणना करो। भाजपा और जनसंघ पहले से ही आरक्षण के खिलाफ है, इन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध ही किया है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? तो ये जब भी हम पिछड़ों की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री गरीबों की बातें करते हैं। अरे पिछड़े क्या श्रीमंत है? पिछड़े तो गरीब है ना। लेकिन जो आरक्षण की बात है उसको टालने का काम, उसके ऊपर बात नहीं करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। वाघमारे साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन कर दिया। आई जनरेटेड 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। वो 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 3.4 करोड़ इज वुमन एम्प्लॉयमेंट दैट इज जनरेटेड। बट योर कैंपेन, कांग्रेस का कैंपेन, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कैंपेन है कि आपने ये क्यों किया? आपने फार्म लॉज लेके आए, आपने विड्रॉ किया, आपने जीएसटी लेके आए, स्मॉल बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया, एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय किया, डिमोनेटाइजेशन डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी एंड द पुअर एमएसएमईज, पीपल हैव लॉस्ट जॉब। 2000 रुपया आपने लाए, आप ही का कार्यकाल में विड्रॉ किया। तो सर किसको बिलीव करें हम? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 15 करोड़ हमने जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से ये 4-5 चीज सोचिए आप
The economy is gone. It's destroyed. Wagmare साहब. देखिए, आपको सोचना पड़ेगा और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, तो अभी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं, ये 15 करोड़ रोजगार कहां से आए? आप आंकड़े देखिए ना, इंडियन मॉनेटरी फंड और जो एम्प्लॉयमेंट का फंड है, उन्होंने उनके जो आंकड़े हैं अभी लास्ट वीक इंडियन एक्सप्रेस शोज those numbers are showing 10% unemployment has been all over the India in city and 12% in a rural area. तो ये जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े की बातें हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का देश अलग है क्या? और जो ये संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन ये जो बातें कर रही है कि बेरोजगारी 10.5% के ऊपर है, तो प्रधानमंत्री कौन से देश के पंतप्रधान है? क्योंकि ये संस्थाएं जो है वो भारत देश की संस्थाएं है, इंडिया की संस्थाएं है और इंडिपेंडेंट संस्थाएं है, सरकार की संस्थाएं है। तो सरकार की संस्थाएं बोल रही है 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट पूरे दुनिया में हमारे पास स्वतंत्रता के बाद इतना नहीं बढ़ा था, वो अभी बढ़ चुका है। तो वो लोग जो सर्वे करके बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं और प्रधानमंत्री सच्चे हैं। अगर आप गूगल पे टाइप कीजिए फेको करके तो किसका नाम आता है? तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि झूठ बोलने वाले कौन है। तो प्रधानमंत्री के बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? लेकिन भागवाने साहब, आपकी ये जो कैंपेन है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल, इट्स फैंटास्टिक। एंड all the surveys except one, there is only one survey which shows that you are losing Madhya Pradesh and Rajasthan. All the others show that you are winning everywhere. Actually 2 surveys, I'm so sorry. There are 2 surveys that show that perhaps you are slightly behind, but the rest and the ground reports we are getting shows that the Congress is really doing well. So what has brought about this miracle, sir? How has the Congress managed this? सर, ये मिराकल नहीं है। हम लोगों के लिए लड़ने के लिए रास्ते पे उतरे हुए हैं जी। हम बेसिक जो लोगों के प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को लेके हम रास्ते पे उतरे हैं। हम हवा में बातें नहीं करते, हम 2 धागों की बात नहीं करते, हम महंगाई की बात करते हैं। हम गरीबी की बात करते हैं तो हम पेट्रोल डीजल के भाव की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बातें करते हैं, हम किसानों को जो मुआवजा नहीं मिलता है उसकी बातें करते हैं, हम एमएसपी नहीं देते हैं उसकी बातें करते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं वो सच बात है, इसके लिए हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री और भाजपा कर रही है, ये इकोनॉमी किसके लिए है और किसके बारे में है? आज दिवाली का मौसम है, मैं बंबई में रहता हूँ। बंबई का जो दिवाली का एक त्योहार का जो एक स्टेटस रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है। आज की दशा आप अगर बंबई में देखिए, किसी भी दुकान में कुछ भी नहीं है भीड़। अगर आपको भीड़ दिखाई दिए तो रोड के ऊपर जो सस्ते में कुछ बेचते हैं उसके लिए हर दुकानदार, हर व्यापारी ये बता रहा है कि ए टाइम का दिवाली जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। महंगाई की वजह से कोई भी कुछ खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो वास्तविकता और सत्यता के ऊपर बात करते हैं। हम सत्यता की बात करके बोल रहे हैं कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। हम सत्यता के ऊपर बात करके बोलते हैं कि अदानी के लिए पूरा देश अदानी के पास बेचो मत। तो इस सत्यता की जो बातें हम करते हैं उसी लिए लोग आज हमारे पास है, नहीं तो लोग हमारे पास क्यों आते थे? ना हमारे पास उतना पैसा है जितना भाजपा खर्चा कर रही है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में हर एक मतदाताओं को कम से कम 200-250 रुपये का बॉक्स मिठाई का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर घर पहुंचाया। अभी ये इतना पैसा कहां से आया भाई? आज एक घर में 200-250 रुपए का बॉक्स आप दोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर
3-3 लाख मतदार है, तो आप सोचो इतने करोड़ों रुपए भाजपा कहां से लेके आए? क्या करते हैं ये? सर हलवाई की दुकान होगी उनके पास। अरे सर हलवाई को भी परवड़ेगा नहीं, हलवाई को भी परवड़ेगा नहीं, ऐसी हालत है। तो ये क्या इनका भ्रष्टाचार, इनके पैसों का खेल दुनिया को और जनता को मालूम हो चुका है। इसीलिए जनता ये सोच में पूरी तरह से कांग्रेस के साथ। और एक दूसरी चीज है सर, वाघमने साहब, we have discussed this earlier, but since you have come after a long time, I really would like your opinion on this. सर चुनाव के एकदम पहले, चुनाव का अभी शुरू हो गया है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए, उसके एकदम पहले सरकारी एजेंसियों के नोटिस गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय अशोक गहलोत जी के सुपुत्र को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, जनाब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब को। सर ये क्या हो रहा है चुनाव के पहले? मतलब मेरी समझ के बारे में सर ये कुछ भी नहीं है। अभी क्या है कि ये लोग हार गए, तो हारने के टाइम आदमी कुछ भी करता है। तो ये उनका ये आदत है कि भाई इंस्टीट्यूट को अपने साथ में ले लो, डरा धमका के कुछ सीटें अगर अपने को मिल सकती है तो उसका एडजस्टमेंट करो, और इसीलिए ये काम करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जब भी चुनाव का समय है, चुनाव के समय केंद्र सरकार की पुलिस रहती है और चुनाव आयोग के हाथ में पूरा कारोबार रहता है, तो इनके हाथ में ही कारोबार हो गया। चुनाव आयोग तो मोदी जी के घर की संस्था है, तो इनकी संस्था होने के बावजूद 508 करोड़ छत्तीसगढ़ में कहां से आते हैं वो इनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, महादेव ऐप के बारे में इतना टाइम से बातचीत चालू है, तो महादेव ऐप इन्होंने अभी बंद कर दिया, इसके पहले क्यों नहीं बंद किया? तीसरी बात, जो नोटिस बघेल साहब को दिया, ईडी ने बताया किसी को पकड़ के, अभी मुझे पकड़ा और मैंने बोला कि ये पैसा मोदी जी का है, तो आप क्या मान लोगे और मोदी जी को कटघरे में खड़े करोगे? ये ऐसे बचपन जैसी हरकतें भाजपा कर रही है। लोग हंस रहे हैं रोड के ऊपर, और लोगों को ये पता चल गया है कि अभी मोदी जी हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का तिकड़मबाजी कर रहे हैं और एजेंसी को साथ में लेके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाघमारे साहब, द ग्राम पंचायत इलेक्शन, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि दुख, दिस इज द मूड ऑफ द पीपल। लोग सोच रहे हैं कि मोदी साहब को 2024 महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शंस में बीजेपी हैज टर्न द नंबर 1 पार्टी, फॉलोड बाय अजित पवार जी, देन द एकनाथ शिंदे जी। देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का कहना है, देखो सर्वे पहले निकल रहा था कि नेता लोग आए हैं मगर वोट शेयर नहीं आए, वोट शेयर इज इंटैक्ट विद उद्धव ठाकरे जी, वोट शेयर इज इंटैक्ट विद शरद पवार साहब। बट ये ग्राम पंचायत का पूरे इलेक्शन में दिखा गया कि नेता भी इस तरफ आ गए और ट्रिपल इंजन सरकार की तरफ, और वोट शेयर भी पूरे इस तरफ आए। एक्सेप्ट कांग्रेस नोबडी कुड होल्ड दैट टर्फ। वाघमारे साहब, नाउ देवेंद्र फडणवीस सेज पंचायत से पार्लियामेंट ये साफ हो गया है, 2024 इज विद मोदी, महाराष्ट्र इज गोइंग टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाउ डू यू सी इट वाघमारे साहब? सर फडणवीस जी के बारे में मैं समझता था कि बहुत बुद्धिमान है फडणवीस जी, लेकिन फडणवीस जी का जैसे राजनेता इस बचपने जैसी बातें करने लगे तो उनको क्या बोलना चाहिए? अरे मैं तो बोलता हूं भाई, सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली, सभी सीटें, एक भी सीट विरोधी दल को नहीं मिली है, सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली है। अरे जो चुनाव में सिंबल ही नहीं है, जो चुनाव में कोई भी सिंबल नहीं रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप इस मुद्दों पे बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। और अगर बीजेपी के प्रति इतनी अच्छा वातावरण है तो फिर हमारे महानगर पालिका का, हमारे नगर पालिका का, हमारे नगर पंचायत का इलेक्शन आज 2-2.5 साल होने को आए, इनकी सरकार बैठी है 1.5 साल होने को आया, क्यों नहीं ले रहे? क्यों हमारा इलेक्शन नहीं ले रहे? बताओ। अगर इनके बाजू से वातावरण है ना तो ले लो ना इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनको मालूम है इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या है, गिरे तो भी टांग ऊपर। अभी बोलेंगे हम सरपंच का इलेक्शन जीत गए,
अरे भाई आप सभी जीत गए, बस इलेक्शन तो ले लो महानगर पालिका और नगर पंचायत का, नहीं तो इलेक्शन ले लो विधानसभा लोकसभा का, उसमें देखते हैं कि कितनी कौन सी पार्टी जीतती है। अगर इनके पार्टी के ऊपर इनको इतना ही भरोसा था तो शिंदे साहब के बाद अजित पवार को क्यों लिया इन्होंने, थर्ड व्हील क्यों लिया? अगर टू व्हील पे भरोसा था तो इससे साफ चाहिए है ये पूरी तरह से डर चुके हैं। इनको पता चल गया है कि ये दोबारा महाराष्ट्र में आने वाले नहीं है, ना लोकसभा में आएंगे ना विधानसभा में आएंगे, तो इनकी बड़बड़ चालू है बच्चे जैसी, तो बच्चे जैसी बात। Vakbar साहब, you know, senior Congress leader the opposition Maharashtra विदेटीवार जी ने बार बार स्टेटमेंट पहले कहा कि मराठाओं को ओबीसी में दे दो, ओबीसी से रेशो से दे दो, फिर उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले विदेटीवार जी कहा कि ओबीसी सेगमेंट पूरा भरा हुआ है, अलाउड विद सो मेनी कास्ट सिस्टम सेगमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन दैट, मराठास विल गेट जस्टिस ओनली इफ दे गो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी है और बहुत ज्यादा आपका इंक्लूजन भी हो जाएगा, न्याय मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन में फैसिलिटीज मिलेंगे। तो हाउ डू यू सी द स्टैंड ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज पटोले साहब का अलग स्टैंड है, विदेटीवार का चेंजिंग स्टैंड है, वाघमारे साहब हाउ डू यू सी जो मराठा आरक्षण आज के तारीख में चल रहा है, कुणबी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मराठा कुणबी अलग अलग है, व्हाट इज योर स्टैंड वाघमारे साहब ऑन दैट? सर एक बात आप ध्यान से सुनिए, कुणबी लोगों को ओबीसी में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, देयर आर कुणबी पीपल जो दे कॉल देम मराठा, दे आर गेटिंग रिजर्वेशन। दिस गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, मराठाओं को पागल बना रही है। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई कुणबी को हम आरक्षण देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन कुणबी को तो आरक्षण है, तो आप नया क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं नया कर रहे हो। इनके पास मराठाओं के लिए बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। कुणबी आरक्षण जो कहा जाता है वो कुणबियों को तो इधर में महाराष्ट्र में आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के अंदर, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जिसका नाम लिखा रहेगा कुणबी में इसके पहले उनको हम कुणबी में उनको ओबीसी का ये लोग सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट जो कलेक्टर देता है उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कास्ट का जो तपासनी करने वाली कमेटी है, जिसको जात पड़तालनी समिति कहा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आपकी जात का पूरी तरह से संशोधन किया जाता है और फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी ये कमेटी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रही है, तो ये सर्टिफिकेट लेके वापस उनको वो संशोधन कमेटी के पास, जात का जो संशोधन समिति है उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे उनको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हाँ ये कुणबी है, तो ही उनको कुणबी में ओबीसी का आरक्षण मिलेगा जो पहले से मिल रहा है। तो ये नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये खाली मराठाओं को अलग अलग छासे देके, उनको फुल तापा देके, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। वाघमारे साहब, फर्दर पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशंस फडणवीस साहब कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, ही इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई, इनजस्टिस कर रहे हैं। आगे जाके इवन सुप्रिया सुले सेड वेयर मराठास आर कंसर्न, फडणवीस साहब उनको धोखा दे रहे हैं, लिंगायत को धोखा दे रहे हैं, धनगर कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं, और मुस्लिम रिजर्वेशन। तो अभी कांग्रेस हैज बीन हाईलाइटिंग द मुस्लिम रिजर्वेशन एंड टारगेटिंग देवेंद्र फडणवीस। यहां तक के बाला साहब थोराट ने कहा कि जेल में देखो क्या रहा, फडणवीस एज अ होम मिनिस्टर आल्सो हैज फेल्ड। तो हाउ डू यू सी दिस सर, मुस्लिम रिजर्वेशंस, पृथ्वीराज चौहान जैसे सीनियर लीडर्स भी इसको उठा रहे हैं, अभी द होल महाराष्ट्र इज ऑलरेडी इन अ वेरी वेरी एजिटेटेड स्टेट, हाउ डू यू सी दिस? सर देखिए, धनगर जब भी उपोषण को बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे धनगर जब भी बैठे थे जी, तभी देवेंद्र फडणवीस ने उनका हंगर स्ट्राइक छुड़ाया ऑरेंज जूस देके, और उनको बोला पिछले टाइम जब भी भाजपा का गवर्नमेंट था कि 100 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में धनगर को आरक्षण देंगे। आज वो 5 साल तो चले गए, 5 साल में तो इन्होंने कुछ किया नहीं,
अभी ये नया गवर्नमेंट के भी 2 साल चले गए, उनको कुछ मिला नहीं, तो उनके साथ झूठी बातें कही। मुस्लिम आरक्षण हमारी सरकार थी तभी हमने 16% मराठाओं को, 5% मुस्लिम को आरक्षण दिया था, नौकरी और शिक्षा। इन्होंने क्या किया, नौकरी का निकाल दिया, शिक्षा में आरक्षण रख दिया, लेकिन जो शिक्षा में रख दिया उसको भी नहीं दे रहे। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ये जो पार्टी से आए हैं, उस पार्टी का ब्रीदवाक्य ये है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो ओबीसी है, किसी को भी आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। इसीलिए ये खाली सिर्फ घोषणा करते हैं, बाकी इनको कुछ भी पड़ी नहीं है और किसको भी आरक्षण देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। यहाँ पर ये एक और चीज है, क्योंकि आपने बात निकाली है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आदरणीय सामान्य छगन भुजबल साहब ने सीधे साधे तौर पर मतलब अटैक कर दिया उन्होंने तो एकनाथ शिंदे साहब पर और देवेंद्र फडणवीस साहब पर। ये क्या हो रहा है कि आप ये जो कुंभी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वैसे 1 साल लग जाता है किसी को भी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लेने में, बैकवर्ड कमीशन से और इधर उधर जो भागना पड़ता है। यहाँ तो आपने दुकान खोल ली है कि इधर आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ। ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरफ छगन भुजबल साहब हैं, दूसरी तरफ जो धनगढ़ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सब भी चिल्ला रहे हैं, और तो और छोड़िए पवन कुले साहब ने भी बहुत कुछ कहा है। अब मेरा ये कहना है कि क्या इन्होंने अब एक इंटरकास्ट वॉर छेड़ दी है कि क्या ये युद्ध होगा सभी जातियों के बीच में महाराष्ट्र में? वाघमरे साहब। नहीं सर क्या है कि जब भी राजनेता झूठ बोलता है जनता के प्रति, उनको सच्चाई को अवगत नहीं कराता, आप जाके सबको बोलते हैं कि हाँ मैं आपको आरक्षण दूंगा। अरे भाई कैसा देंगे? आरक्षण आपके हाथ में है कि केंद्र सरकार के हाथ में? मोदी जी तो चाहते नहीं, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ किसको मदद की तो वहां जाट खड़े हैं उनको चाहिए, वहां गुजर खड़े हैं उनको चाहिए। फिर क्या करेंगे मोदी जी? तो मोदी जी तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। और इधर सच बात बताने के बजाय फडणवीस जैसे लोग आके झूठी बातें जनता को देते हैं, लॉलीपॉप और चॉकलेट बांटने का काम करते हैं फडणवीस जी। तो आखिर में तो आपका झूठ तो बाहर आने वाला ही है। देखिए इंदिरा सहानी का खटला जो है 50% अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 9 जजेस का कमिटी के सामने जाना पड़ेगा रिव्यू के लिए जी। अभी उसके लिए तो 4 से 5 महीना लगेगा। अच्छा दूसरी बात, जो 50% जो कैप किया गया है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना समिति में जब भी भाषण किया था तभी उनको पूछा गया था कि और कितना आरक्षण दोगे, तभी उन्होंने बताया था कि 50% के ऊपर हम जा नहीं सकते, और उसका संदर्भ लेके इंदिरा सहानी में 50% की मर्यादा डाली गई। अभी अगर आपको मर्यादा उठानी है तो कौन से मुद्दों के ऊपर आप मर्यादा उठा सकते हैं और कैसे उठाओगे? और जब तक आप जात न्याय जनगणना नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कम्युनिटी के कितने लोग हैं और कितने को कितना आरक्षण मिल रहा है। तो जात न्याय जनगणना के लिए आप तैयार नहीं है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। बट ओवर हियर सर देयर आर 2 थिंग्स हियर। जब अभी स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का जिसमें महिला आरक्षण के लिए बात हुई और उसके बाद वो कानून भी पास हुआ विच विल बी इम्प्लीमेंटेड परहैप्स इन 2030, तब ऐसा लग रहा था कि शायद मराठा आरक्षण के लिए कोई अमेंडमेंट संशोधन कुछ लाया जाएगा। वो 102nd अमेंडमेंट में जो 50% कैप है उसके ऊपर लाया जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आदरणीय सामान्य मोदी जी यहाँ पर आए शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोगों को ये लगा, क्योंकि जैसे प्रदीप जी बार बार बोलते हैं कि ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा था फॉर सोशल जस्टिस, ऐसा करके लिखा था, तो हम लोग यही ताक में बैठे थे कि भाई अभी मोदी जी कुछ बताएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछता हूं वो ये है कि मंडल कमीशन में मराठास आर लिस्टेड एज अ फॉरवर्ड कम्युनिटी, नॉट एज अ बैकवर्ड कम्युनिटी। अब आप बैकवर्डनेस कैसे दिखाएंगे सर? नॉट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस कैसे दिखाएंगे? मेरा ये जानना है आपसे। आपको एक अलग एक समिति का गठन, आयोग का गठन करना पड़ेगा जी। वो गठन जाके ये फाइंड आउट करेगा कि मराठा बैकवर्ड है या नहीं। देखिए उस वक्त मराठा पावरफुल कम्युनिटी थी, लेकिन जब भी फैमिली में
संख्या बढ़ गई, डिवाइड हो गए फैमिली, तो हर एक की जमीन जो है वो कम होती गई। तो उनके पास अभी कितने मराठा है कि उनके पास जमीन ही नहीं है, कितने मराठा है उनके पास जमीन बहुत कम है। तो नेचुरली उनकी परिस्थिति अभी बहुत खराब हो चुकी है जी। उनको शिक्षा में जरूरत है आरक्षण की, उनको नौकरी में जरूरत है आरक्षण की, और हमारी भी ये इच्छा है कि मराठाओं को किसी भी हालत में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो बात करती है, हम 2 इंजन की सरकार है, तो 2 इंजन को केंद्र सरकार का सपोर्ट लेके इन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ते आगे? लेकिन ये सबके साथ झूठी बातें करते हैं, तो झूठी बातें करके एक ना एक दिन झूठ तो बाहर आने वाला ही है, तभी क्या करोगे? So sir, but don't you think that it'll be far better as you know, who's the Congress leader that you were mentioning? Virativar Sahab. Virativar Sahab suggested that Marathas should be given extra reservation under EWS, economically weaker sections. क्योंकि लैंड डिवाइड हो गई, ये सब हो गया, उससे जातीय बैकवर्डनेस कैसे आ गई? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई ना सर, सोशल बैकवर्डनेस कैसे आई, सामाजिक पिछड़ापन कैसे आया सर? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी इज डाउन, समाज के प्रति अभी उनका समाज ही पूरा पिछड़ा हो गया ना। किसी को नौकरी नहीं, कोई सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो नेचुरली इट्स कम इनटू द बैकवर्ड थिंग, दैट इज नंबर 1। लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन में खाली मराठाओं को आरक्षण दो, ऐसा अगर हमारे नेता बोल रहे हैं तो वो भी गलत है, उसमें मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिक विकर जो सेक्शन है वो सभी कम्युनिटी के लिए है। दुरुस्त बात कि सभी कम्युनिटी, अभी ब्राह्मण समाज में भी अगर कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस में मिलना चाहिए। तो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मराठाओं को उसमें दे दो। लेकिन अगर सर रिजर्वेशन मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मिलने वाला? सर अभी मैं आगे ये सवाल आपने बराबर निकाला। देखिए ये फडणवीस की सरकार कैसे गेम खेल रही है मैं बताता हूँ। देखिए रिजर्वेशन नौकरी में है और वो भी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है जी। भाजपा वालों ने इतना अच्छा गेम खेला है। 2014 में इनकी सरकार आने के बाद जो एसपी के लोग थे, जिसको सेक्रेटरी का जॉब मिलता है, डेस्क ऑफिसर का जॉब मिलता है, पीए का जॉब मिलता है, उस जगहों के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अपने आरएसएस के और पार्टी के लोगों को रखना चालू कर दिया। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आए। अभी यहाँ महाराष्ट्र में भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का पूरा जीआर निकाला था, लोगों ने विरोध करने के बाद उनको कैंसिल करना पड़ा। तो नौकरी में आरक्षण की बातें करते हैं और नौकरी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में तो आरक्षण मिलेगा नहीं जी। तो फिर आरक्षण किसमें मिलेगा? पढ़ने के लिए आरक्षण मिलेगा, लेकिन पढ़ के तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी ये लोग उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर रहे हैं, तो उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा? सर पुलिस में भी है तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। So that is ये भाजपा की नीति है ना। ये भाजपा एक हाथ से बोलती है मोदी साहब कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ से वो सब नौकरियां, वो सब फैसिलिटीज वो छीन के लेके और बोलते हैं ले लो अभी आरक्षण ले लो। मतलब पहले दांत निकाल देने का और फिर चना खाने को देने का, बोलने का अभी चना चबाओ। अभी वो चबाएंगे कैसे? We'll get you dentures, maybe later. So, Vagmane Sahab, but anyway, congratulations. The Congress has been doing a wonderful job, especially in Rajasthan and Madhya Pradesh and Chhattisgarh. अरे सर, लेकिन आप लोग हमें बुलाते ही नहीं है। आपका चैनल तो बीच में भूल गया हमको। Sir, we call you. You are star spokesperson, sir. Vagmane Sahab, you are star spokesperson. अरे सर, लेकिन अभी बीच में तो बुलाया नहीं मुझे। मैं हैरत में था भाई, क्या हो गया कि हमारे ऊपर बंदी लाके थी नेशन नाउ ने। सर, that you know is not possible. You know that is not possible. राजू साहब तो कर ही नहीं सकते ऐसे।
Vagman Sahab, Happy Diwali. Happy Diwali to you too, sir, and it's been a great pleasure, as always, talking to you. All our spectators, Happy Diwali. Thank you very much, sir, and Happy Diwali to you, to your family, to all your friends, and all Yeah, your yeah, all well-wishers. And I hope on 3rd December we really have a Happy Diwali when the results come up. Sir, I like your look. I like your new look. Very nice. It's taken a long time to get here with this new look. I know. But thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Namaskar, sir. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Thank you. Thank you. But really, Pradeep ji, as we've been discussing, especially with the Maharashtra Navnirman Sena, sir. if you remember, ये सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि भैया अगर तुम्हें आरक्षण मिल भी गया तो क्या मिलेगा? Exactly. हर जगह तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू है। Yes, exactly. हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गई है, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो आपने बेच दिए हैं। Totally. तो मतलब नौकरियां कहाँ हैं? I mean, what is going on here? I really don't understand. Why aren't the people in charge of the Maratha agitation asking these questions? ये सवाल मतलब जो राज ठाकरे जी ने वहां पर जाकर के ये सवाल पूछे, ये तो बोलने चाहिए ना, मतलब किसी ना किसी को तो बोलना चाहिए यार। केतन नायक साहब नमस्कार। सर नमस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू सर। अरे हीरो हमारे बॉलीवुड के स्टार जो गलती से नेशन नाउ पे कभी कभी आ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी ये इतने फेमस होने वाले हैं कि नेशन नाउ के लिए इनके पास टाइम नहीं रहेगा। मुझे बॉलीवुड में भी आपको जाना पड़ने वाला है। आपने जो लुक बनाया है सर, बाबा का लुक है। बाबा आर के बी, माय अदर नेम इज बाबा आर के बी, सो गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज। हर हर महादेव। लेकिन सर आप लेकिन केतन नायक जी, दिवाली तो ठीक है यार, मतलब हैप्पी दिवाली, लेकिन मैं बाजार में घूम के आ रहा था, मैं जान करके गया, मैंने जरा देख के आते हैं क्या है माहौल क्या है। यार दिवाली का माहौल तो लग ही नहीं रहा। आपको लग रहा है दिवाली का माहौल है? सर एक बार आप शिवाजी पार्क आ जाइए। जी नहीं, लेकिन बाकी जो लिंकिंग रोड है, बाकी जगह जो है वहाँ दुकानें सारी खाली पड़ी हैं, सब कुछ मतलब क्या है? डू पीपल हैव मनी? लोगों के पास पैसे हैं, खर्चने के लिए हैं पैसे? आपको दिख रहा है क्या? सर मैंने तो कुछ और देखा है। मैंने तो देखा है कि काफी जगहों पे अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। लोग बहुत सारी शॉपिंग भी कर रहे हैं। गाड़ियों के सेल में भी इजाफा हुआ है। फैंटास्टिक। सोने की खरीदी में भी इजाफा हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तरक्की कर रही है अभी, मतलब हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं बस। कितना एक साथ सर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो भारत की हमेशा से 2 तरह की अर्थव्यवस्था रही है, ऐसा मुझे लगता है जी। जब भी हमारे देश से कैश को बाहर किया गया जी, मतलब जो नोटबंदी वाला जो निर्णय था जी, उसके पहले भी एक अलग इकोनॉमी अपने देश में चलती थी, और मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह की इकोनॉमी बनी हुई है जो परंपरागत रूप से चलती आई है, और लोग अपना सेविंग्स और उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो भारत के लोग पैसा जोड़ने में बिलीव करने वाले लोग हैं और वो अपनी सुरक्षा खुद करने में भी बिलीव करते हैं। तो सरकार का कितना इसमें रोल है ये तो अलग बात हो गई, लेकिन एवरी इंडिविजुअल अपने आप के लिए अरेंजमेंट्स करके रखता है, अपने फैमिली के लिए अरेंजमेंट्स करके रखता है, फिर वो भले कोई एक बीएसटी का ड्राइवर कामगार हो या कोई कंपनी का सीईओ। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी प्रदीप। केदार नाइक जी, आपका जो दीपोत्सव था इट वाज अ फैंटास्टिक थिंग। यस, दीपोत्सव बहुत जबरदस्त तरीके से गया। सलीम जावेद जी को आपने बुलाया था एंड यू लिट अप द एंटायर शिवाजी पार्क, एकदम जबरदस्त हो गया था। मगर कुछ लोग का आलोचना करने, आशीष शेलार आलोचना कि सलीम जावेद ही मिला था क्या? आपको मराठी के टॉप लीडर एक्टर्स को बुलाना था, मराठी के टॉप जो मराठी फिल्म्स उस नाटक वहाँ कलाकार उनको बुलाना था। वाई सलीम जावेद? हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट केदार नाइक जी? अब बीजेपी इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना, आशीष शेलार इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना। सर मुझे लगता है आशीष शेलार जी के पास में फिलहाल कोई नई बात है नहीं। उद्धव ठाकरे जी और उनके पार्टी के खिलाफ वो बात करते थे, अभी वही फिलहाल कुछ कर नहीं रहे, तो उनके पास शायद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए शायद प्रसिद्धि के लिए उन्होंने मनसे के इस दीपोत्सव पे प्रश्न उठाए होंगे। क्योंकि आप अगर देखेंगे सर तो मराठी भाषा दिन हो या ये दीपोत्सव हो, ये सारे कार्यक्रमों के जो जनक है वो हमारे राज साहब ठाकरे हैं। मतलब पहले वो कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से लाया जाता है, उसको अच्छी तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जनता में उस विषय की एक चर्चा हो जाती है और फिर अलग अलग पार्टियां उस चीज को लेके सामने आ जाती है कि हमें भी ये इवेंट करना है करके।
तो उसी प्रकार से आशीष जी ने भी शायद कहीं पे एक इवेंट इस तरह का रखा हुआ है जहाँ पे उन्होंने दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है। वहां पे उन्होंने इस साल मराठी सेलिब्रिटीज को और एक्टर्स को बुलाया, लेकिन उनको ये बात की भी जानकारी लेनी चाहिए थी जो उनको होगी, लेकिन वो बताते नहीं है। पिछले साल का जो दीपोत्सव वहां पे हुआ था, वहां पे सारी मराठी इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, मराठी साहित्यक हो, लेखक हो, उन सारे लोगों को वहां पे बुलाया गया था। एक बहुत ही पॉपुलर शो आता है चला हवा ये उद्या करके मराठी में, उसकी पूरी टीम वहां पे आई थी। अलग अलग सीरियल्स जो चलते हैं उनकी टीम वहां पे आई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मराठी कलाकारों को वहां पे स्थान नहीं दिया गया। जिस दिन जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब वहां पे आए थे, उस दिन भी रितेश देशमुख जी और आशुतोष गोवारीकर जी वहां पे थे। तो सर ये कोई टीका करने का आई डोंट थिंक यू नीड टू जस्टिफाई नहीं बनता। केतन नायक साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जावेद अख्तर साहब ने अभी भी 2 दिन पहले क्या लिखा यार, मजा आ गया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को जय श्री राम बोलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? इन दीपोत्सव खुद, एंड नॉट ओनली दैट, प्रदीप जी, the other thing, don't you remember his last speech? He has been a very dear friend of राज ठाकरे साहब, जावेद अख्तर साहब। राज्यसभा की उनकी जो लास्ट स्पीच थी यार, वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा कौन बोलता है, मुझको कौन रोकेगा बोलने से भारत माता की जय। सबके सामने बोलता हूँ भारत माता की जय। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुमको नहीं बोलना मत बोलो, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। क्या कर लोगे तुम? एंड द सेम थिंग ऑफ सलीम साहब, सलीम खान, ही सर तुम होते कौन हो मुझे इस्लाम से निकालने वाले? मैं गणेशोत्सव रखने आपको याद होगा गणेशोत्सव के ऊपर, बिकॉज आई रिमेंबर आई इंटरव्यूड हिम एंड ही सेड, मैंने कहा जी इस्लाम में ये कोई मनाही थोड़ी है कि आप किसी मंदिर में जाएं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप खड़े हो सकते हैं। और सलीम खान साहब ने मुझे ये कहा, किसने बोला मैं सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट जा रहा हूं? मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो आरती करता हूं, मैं गणपति को मानता हूं। अब कौन होते हो तुम मुझे इस्लाम से निकालने वाले? पहले मुझे ये बताया जाए कि इस्लाम में मुझे लाने वाला कौन था। जब कोई लाया नहीं तो निकालेगा कैसे? सब सीधा सी बात है। So this was a brilliant move. This is fantastic. But there also Javed Sahab has talked about Sri Ram. He says Sri Ram is a greeting and I will say Sri Ram. और यहीं पर भी I think केतन नायक जी जय श्री राम बोले थे उन्होंने। जी एक नहीं 3 बार। And this, अरे भाई उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हमें तो याद है हर एक कोई एक दूसरे को राम राम कह के बोलता था। ये बहुत पुरानी ग्रीटिंग है। हर एक कोई राम राम बोलता था, राम राम जी कैसे हैं, सब ठीक है, ये हुआ करता था। एंड एज फार एज राज ठाकरे साहब इज कंसर्न, मतलब राज ठाकरे की जो थिंकिंग है वही अलग है, वही सोच ही अलग है। अभी बाकी जितने भी हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद उसको समझ नहीं पाए या क्या नहीं कर पाए, मुझे मालूम नहीं है। बट आई विल टेल यू समथिंग। जी बोलिए सर प्लीज। समझते सभी है सर, सिर्फ इनको टीका करनी है, कुछ बात करनी है, इसके लिए लोग करते हैं। अब जावेद अख्तर जी जैसे जो व्यक्ति है, जिनको मेरे ख्याल से वो अपने आप को एथिस्ट भी कहते हैं जी, लेकिन श्री राम जी के साथ में इस देश की संस्कृति का जो जुड़ा होना है उसको वो नकारते नहीं है। उन्होंने आज या इससे पहले कभी भी श्री राम जी के अस्तित्व को नकारा नहीं है कि श्री राम जी यहाँ पे होके गए, रामलला का मंदिर यहाँ पे है, पूरा इतिहास, उसको इतिहास के साथ में जोड़ा जाता है, ऐसी बात उन्होंने वहां पे रखी है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सर? और इस बात पे अगर बीजेपी के लोग टीका करने वाले रहेंगे तो सर उनकी कंप्लीट आइडियोलॉजी चेक करने का समय आ गया, ऐसा लगता है सर। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी क्योंकि दिवाली का सीजन है। नंबर एक तो दीपावली की आपको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके अलावा जिस प्रकार आप अकेले हैं जिन्होंने वसाई विरार टैंकर माफिया के खिलाफ काम किया, मुंबई गोवा हाईवे को लेकर के अभी तक आप काम कर रहे हैं, टोल फ्री महाराष्ट्र को लेकर के अभी तक आप काम कर रहे हैं, और तो और छोड़िए पुणे में जो हॉस्पिटल्स हैं उनका सुधारीकरण किस प्रकार हो उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक के विदर्भ में वहाँ पर भी आपने एक नया अभियान शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस कदर लोगों के विषयों को सामने नहीं ला रही है जितना कि एमएनएस कर रही है। जबरदस्त। अब दिवाली के बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा सर केतन नायक जी? सर एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, हमेशा हमारी कंपैरिजन और तुलना जो शिवसेना है उसके साथ में की जाती है, उद्धव ठाकरे जी के साथ में काफी मतलब कहा जाता है वहां से आप निकले हो वगैरह। अगर आज इवनिंग का आपने पूरा अगर मीडिया चेक किया होगा, न्यूज चेक किया होगा, दिवाली के दिन शुरू हो गए सर। आज दिवाली के कल से दिवाली शुरू हो गई, सारे घरों में आज खुशी का माहौल है जी। और ऐसे वक्त पे उद्धव ठाकरे साहब थाने में कोई उनकी शाखा टूटी गई, उसकी मतलब उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वो वहां पे आज गए। बड़ा हंगामा वहां पे मचा पड़ा था, दोनों पार्टियां, दोनों गुट आमने सामने आए थे और
सारे पार्टी के वर्कर्स जो होते हैं, सारे कार्यकर्ता जो होते हैं, वो उसमें उस पूरे दंगल में जुट गए थे। तो सर हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में यही डिफरेंस है कि हम जो काम भी कर रहे हैं, अगर आंदोलन करना भी है तो लोगों का जो उत्सव का समय है, लोगों को जो खुशी का समय है, उसको हम खराब नहीं करने जाते जैसे बाकी पार्टियां कर रही है। आप देखेंगे कि आपने ये मुंबई गोवा हाईवे का मुद्दा रखा हो, या वसई विरार का टैंकर का जो अभी पानी का मुद्दा था वो हो, या सारे हमारे मुद्दे हो, इन सारे मुद्दों को कब उठाना है और लोगों को तकलीफ कम से कम दे के इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसका पूरा प्लान हमारे पार्टी के पास होता है। और ये हमारी सीनियर लीडरशिप से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, उस प्रकार से उस आंदोलन को लिया जाता है। तो ये डिफरेंस है सर। इस आज निमित्त के द्वारा मैं वो डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम जो शांत बैठे हुए हैं वो एक खुशी का माहौल इस देश में है, इसके लिए हम शांत है। लेकिन अगर कोई संकट इस दौरान भी अगर आता है तो हम ही लोग पहले होंगे जो उसके सामने खड़े होंगे। फैंटास्टिक। केतन नाइक जी, एवरीबडी हियर अभी फिलहाल जितने भी पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, सुप्रिया सुले जी हो, द गनिंग फॉर देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी बोले कि आपने मराठाओं को धोखा दिया, आपने धनगर समाज को धोखा दिया, आपने लिंगायत को धोखा दिया। अभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी उन्होंने कहा कि फडणवीस जी ने सबको धोखा दिया है। फिर बाला साहब थोराट हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, मुस्लिम रिजर्वेशन को जिस प्रकार से साइलेंटली उठाने लग शुरू कर दिया कि यहां पर भी अत्याचार हो गया। तो अभी जिस प्रकार से विदेटीवार अभी कहा कि मराठास को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जाना चाहिए, ओबीसी में बहुत रिजर्वेशन में बहुत सेगमेंट में बहुत भीड़ है, किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो आप कैसे देखते हो जिस प्रकार से फडणवीस जी के पीछे सब पार्टीज पड़े हैं? यू थिंक फडणवीस जी ने धोखा दिया है हर सेगमेंट को? केतन नाइक जी सर, जो आरक्षण की बातों को लेके चल रहा है, तो सर सारी पार्टियों ने अपने अपने समय आरक्षण के मुद्दों पे बात करके उस समाज को धोखा दिया है। फडणवीस साहब ही थे जो धनगर आरक्षण की बात करते थे, इनके पार्टी से बाकी कांग्रेस के कुछ लोग थे जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे, मराठा आरक्षण की बात करते थे, बाकी सारी चीजों की बात करते थे। लेकिन जब जब इनको सत्ता में रहने का टेन्योर मिला, तब तब उन्होंने इस चीज पे स्लो डाउन कर दिया था, तब तब उन्होंने इस चीज को हमेशा से दूर रख दिया था। तो इनको किसी को भी ये कहने का, जैसे आपने पिछली बार सवाल पूछा था कि सुप्रिया सुले मैडम फडणवीस जी पे टीका कर रही है वगैरह, तो सर उनके जो फादर है शरद पवार साहब, उनके पास तो काफी टाइम से इस देश की इस केंद्र सरकार की सत्ता में वो बने थे। तो वो अगर चाहते, तो अभी तो बीच में किसी और एक सीनियर लीडर का स्टेटमेंट आया कि वो अगर चाहते तो एक चिट्ठी से मराठा आरक्षण दे सकते थे, ऐसी ताकत उनके पास एक समय थी। तो तब इन ताकतों का एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया गया? आज दूसरों पे टीका करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके पास वो करने की स्थिति थी, आपके पास वो संधि थी, तब आप क्या कर रहे थे? ये सवाल कोई अगर उनको पूछे और इसका अगर जवाब मिले तो मुझे लगता है इस विषय में और क्लियरिटी आ जाएगी। ना आप बच्चू कडू के बात करते हैं। बच्चू कडू जी ने कहा कि शरद पवार साहब का एक लेटर में 52 अलग अलग सेगमेंट ओबीसी को उनको न्याय मिला, उनको ओबीसी सेगमेंट में रिजर्वेशन उनका हो गया, तो शायद मराठा को भी जोड़ देते तो शायद मराठा को बिना ये सब जो कुनबी है ये है उस चीज का वो डायरेक्टली वही लेटर के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल जाता, पर हुआ नहीं। दैट इज व्हाट बच्चू कडू जी ने शायद बोला होगा। तो ये आप कांग्रेस के विदेटीवार जी के स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप? मराठा शुड बी ऑक्यूपाइड इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो सबको जस्टिस मिलेगा, कैसे देखते हो आप उस स्टेटमेंट को? सर मुझे तो समझ में नहीं आता वडेट्टीवार जी जो हमारे अभी मेरे ख्याल से अपोजिशन लीडर है, उनको कैसे देखा जाए ये मुझे समझ में नहीं आता। उनकी जो जर्नी रही है राइट फ्रॉम शिवसेना टू कांग्रेस, उस सारी जर्नी के बाद में ऐसे नेता के पास हम लोग देखे ही कैसे? पहले तो मेरा ये सवाल है। उनके स्टेटमेंट्स हमेशा कुछ मतलब कोई और कुछ चलता होगा और इनके स्टेटमेंट कुछ और आएंगे, तो उनके स्टेटमेंट पे सर बात नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को ऐसे भी कोई कीमत यहाँ पे बची ऐसा मुझे लगता नहीं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पर वैसे भी जहाँ तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट कम। गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी से सच क्यों नहीं बोल रही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर में आपका सच तो सामने आएगा ही, आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे राज ठाकरे साहब ने जाकर के वहां सच बोला कि भैया आप जो हैं प्लीज डोंट बी मिसलेड, ये राजनीतिक लोग जो हैं आपको फिर धोखा दे सकते हैं, कृपा करके जरा सतर्क हो जाइए। क्योंकि साहब मंडल कमीशन में द मराठा कम्युनिटी इज लिस्टेड एज अ फॉरवर्ड कम्युनिटी, उसको बैकवर्ड बनाने में एक पूरी बैकवर्ड कमीशन का नई कमीशन का एक गठन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होगा, उसके बाद वो तय करेगा
कि क्या आप सोशली बैकवर्ड हैं या नहीं है, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, सीधी बात है। और ईडब्ल्यूएस में तो सभी लोग हैं, वो तो सभी के लिए जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो यहां पर ये लोग आपके मुताबिक केदार नाइक जी ये सच क्यों नहीं बोलते हैं लोग? व्हाई डोंट दे टेल द ट्रूथ? क्योंकि अब तो साहब देखिए इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर झूठ चलता नहीं है केदार नाइक साहब। सर जो पार्टी सिर्फ वोट बैंक और इलेक्शन इसको सामने रख के काम करती है वो कभी सच नहीं बोल पाएगी। हमारे राज साहब ने कभी भी कोई भी स्टेटमेंट या कोई पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करते हुए इसका वोट बैंक के ऊपर क्या परिणाम होगा इसके बारे में नहीं सोचा है। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। ये कहने की ताकत जो रखता है उसी को लीडर कहा जाना चाहिए। सर अभी ये डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए लोगों के सामने जी कि ये सारे लोग जो वहां पे आपको गलत गलत बातें बता रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ पावर में बने रहने का है, फिर वो नगर पालिका की पावर हो, स्टेट की हो या सेंटर की हो जी। अगर किसी को सच कहना है तो उसको उसका खामियाजा भुगतने की तैयारी रखनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये सीख हमारे राज साहब को बाला साहब ठाकरे के जमाने से मिली हुई है, और बाला साहब ठाकरे जी ने जैसे उनको संस्कार दिए उस संस्कार पे हमारी पार्टी आज राज साहब के नेतृत्व में चलती है। तो सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत कहना जिस नेता का काम होता है उसके साथ में हमें। केदार नाइक जी, आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि ये पूरे सरकार को, एकनाथ शिंदे जी को मालूम ही नहीं था कि दिवाली में बीएमसी को बोनस देना है। बोले कि आदित्य ठाकरे जी ने उठाया सवाल कि बीएसटी के वर्कर्स को बोनस देना है, बीएमसी के अलग अलग एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तभी एकनाथ शिंदे जी जाग गए, फटाफट मीटिंग बुलाए। अभी आप भी कर्मचारियों से यूनियन से जुड़े हुए हो, बीएसटी यूनियन से जुड़े हुए, तो ये बोनस का प्रक्रिया क्या हुआ? क्या डिले हुआ था? एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से सीएम ने डिले कर दिया था, या जो बोनस मिला वो नॉर्मल बोनस है? आप तो यूनियन से संबंध रखते हो, बीएसटी के जितने कामगार एसोसिएशन से संबंध रखते हो, तो ये बोनस का प्रक्रिया कैसा रहा इस बार दिवाली के? सर आदित्य ठाकरे जी जो ये कह रहे हैं, मुझे आजकल उनकी बातों को थोड़ा सा समझ में मुझे कठिनाई हो रही है। बीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के बाद में मुख्यमंत्री साहब का दौरा रद्द हो गया। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने आवाज उठाई तब जाके बीएमसी वर्कर्स को बोनस मिला। सर ये जो बोनस की प्रक्रिया होती है वो काफी समय से चलती आती है। हर व्यक्ति जो काम करता है उसके एवरी मंथ के सैलरी के हिसाब से, उसके जो डेज फिलअप किए गए हैं उसके हिसाब से उसका बोनस कैलकुलेट होते रहता है, और ये हर साल की प्रोसेस है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बीएमसी की हर साल की प्रोसेस है। बीएमसी में बाकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना पड़ा है जिसका काम होता है सैलरीज और ये सारी चीजों को मैनेज करना। तो इसमें आगे पीछे होता है एज पर फंड्स अवेलेबिलिटी। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी अगर किसी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कंपनी क्रंच में हो तो वो बोनस को थोड़ा सा डिले करती है, लेकिन कोशिश कंपनी ये करती है कि बोनस दिवाली के एक दिन पहले एटलीस्ट बढ़ जाए। लेकिन उनके पास जो सैलरी स्ट्रक्चर का डेटा होता है वो हमेशा से बना होता है। ये किसी के कहने से जागरूक होके नहीं बनता, वो तो निरंतर प्रक्रिया सर, वो हमेशा चलती आती है और सालों साल चलती आई है। तो ये हास्यास्पद है कि उन्होंने कहा है कि हमने बताया तब जाके फडणवीस साहब को बोनस का पता चला। तो फडणवीस साहब नागपुर में इतने साल से आमदार रह चुके हैं, वो विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, उनको बोनस की प्रक्रिया नहीं पता, वो खुद एक एडवोकेट है। ऐसे हास्यास्पद बयान इनके तरफ से जो आने लगे ना सर, मुझे लगता है सत्ता से बाहर जाने का सदमा अब तक ये उभर नहीं पा रहे उससे, और आगे तो क्या क्या होगा वो देखना अभी बाकी है। लेकिन केदार नाइक जी जो आपने कहा है, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बड़ी सरल भाषा में समझा दूं, ये सारा ब्यूरोक्रेट देखते हैं भाई। एब्सोल्युटली, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट है, वो इसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू हो जाती है कि इस बार दिवाली का बोनस कैसे जाएगा, कहां से जाएगा, कौन से इंटरेस्ट से, कौन से अकाउंट से किधर जाएगा। मतलब ये आई डोंट नो व्हाट इज अप टू, व्हाट यू थिंक इज अप टू। क्या ये सिर्फ सत्ता? सर मुझे तो लगता है उन्होंने एक ट्वीट और कर देना चाहिए कि वसई विरार में जो पानी का प्रश्न बना पड़ा है उसके बारे में भी एक ट्वीट कर दे, तो शायद वहां पे भी कल से पानी आ जाए, अगर इनके ट्वीट में इतनी ताकत है। हाँ, कर देना चाहिए, दुरुस्त बात है। तो और मुंबई गोवा हाईवे भी बन जाएगी 1 मिनट में, वो भी बन जाए, करेक्ट। और महाराष्ट्र टोल आरक्षण पे भी कर दीजिए, और महाराष्ट्र टोल फ्री भी हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा बिल्कुल। बट वेरी स्ट्रेंज, आई फील वेरी अनहैप्पी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। केदार नाइक साहब, एज यू नो, बाला साहब ठाकरे वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छे मित्र थे। इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, आदित्य ठाकरे वगैरह को। अरे कुछ तो सीखना चाहिए था, मेरा ये कहना है। आप बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, उसी घर में आप बड़े हुए हैं, आपको लगता नहीं कि इनको कुछ तो सीखना चाहिए था? मतलब ये कैसे, हाउ?
या इनका ट्वीट कोई और कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कहीं कितना एक साथ? सर अभी ये तो जान पाना मुश्किल है, क्योंकि जब इनके पास बीएमसी की सत्ता थी जी, तब तो मेरी जानकारी के मुताबिक अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग डेजिग्नेट किए गए थे, जो मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहते, ऐसे लोगों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, और वो धीरे धीरे अलग अलग इंक्वायरीज के साथ में वो सारी चीजें सामने आती जा रही है जी। तो शायद अगर ऐसी फैसिलिटी होती तो अपने लिए सीखने के लिए भी अगर किसी को बिठा देते तो ऐसे स्टेटमेंट्स आज नहीं आते सर। और हमारे राज साहब की भाषा में अगर बताऊं तो वारसा जो होता है, जिसको हम बपोती जिसको कहते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी की नहीं होती है सर, वो थॉट और विचारों की होती है। तो विचारों का वारसा अगर आपको लेना है तो आपको वो आत्मसात करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है। मुझे लगता है ये बिल्कुल उसमें थे नहीं उस प्रोसेस में, इसके लिए इनकी आज ये हालत बनी पड़ी है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है। राज साहब ठाकरे हमेशा पोल्यूशन इश्यूज, आपने हमेशा रिवर्स है, जो 4-5 रिवर्स है मुंबई के, उसके बारे में हमेशा आवाज उठाते रहे। बट एकनाथ शिंदे जी बहुत क्रिटिसिज्म के बाद पोल्यूशन में बोले कि सीरियसली इसको टैकल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि 1000 वाटर टैंकर 1000 वाटर टैंकर और पानी डाल के पूरे रोड को, जो स्मॉग है, डस्ट है, उसको कंट्रोल किया जाए। फिर आगे कोर्ट भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये आदित्य ठाकरे उसमें इन्वॉल्व हो गए कि बोले कि ये सरकार को कुछ मालूम नहीं है, हमने पोल्यूशन में ऐसा किया था। तो आप कैसे देखते हो ये पोल्यूशन, क्या सरकार कंट्रोल कर पा रही है? पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, एयर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बहुत खराब स्थिति पे पहुंचा हुआ है। सरकार की तरफ से और मेजर्स होना चाहिए, कैसे लगता है किधर नाइक जी? सर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने पोल्यूशन के लिए क्या किया ये तो एक अलग सवाल हो गया, लेकिन मुझे लगता है 2 दिन से जो मुंबई में बारिश हुई है उसके वजह से थोड़ा पोल्यूशन शायद अभी कम हुआ, और आज की रिपोर्ट आई है कि पोल्यूशन हवा मुंबई की सुधर गई। लेकिन सर ये पोल्यूशन और ये सारी जो चीजें होती है इन पे सर सत्ताधारियों का ये काम होता है। जब आपके पास सत्ता होती है तो कुछ ऐसे ठोस मेजर्स लिए जाने होते हैं, ये कभी नहीं लिए गए सर। आज मेरी कल एक कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही थी जिनका काम होता है बिल्डिंग को रिपेयर करना, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ये जो पोल्यूशन की बात छिड़ी है तो हमें बताया जा रहा है कि अभी सारी जितनी भी आपकी साइट्स काम चल रहे हैं जिन पे, उसको बाहर से आपको कर्टन लगाने हैं कपड़े के, और उसके बाद ही आप अंदर काम कर सकोगे। लेकिन सर ये तो मेरे ख्याल से मैंडेटरी होता है, ये तो लॉ में होता है कि आपको वो कर्टन लगा के ही काम किया जाना चाहिए ताकि वो धूल मिट्टी बाहर ना जाए। तो ये जब होता नहीं है तो इसको चेक करने वाली टीम कहाँ है? ये इस चीज को अगर लॉ है तो उस लॉ को इन्फोर्स किया गया है या नहीं, ये देखने वाली टीम कहाँ है? इस टीम का एग्जीक्यूशन किसके हाथ में था आज तक? तो सर ये सारे इनके पाप है जो पाप अभी भुगतने पड़ रहे हैं। वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने सर और एक बात बताई कि हमारे लिए ऐसे निर्बंध डाल रहे हैं, लेकिन जो मुंबई में कोस्टल रोड का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, एवरी मुंबई का हर एक रास्ता जो खुदा पड़ा है, वहां की जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसको कंटेन करने के लिए क्या प्रोसेस है? उसको कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा से चलता आया है। जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो कुछ 4 लोगों पे कार्रवाई दिखा दो और अपना वैसा ही रख दो, ये हमेशा से गवर्नमेंट से होता है और यही ये करते रहेंगे सर। इनफैक्ट व्हेन वी कम टू बीकेसी, लेट मी टेल यू दिस केतन नाइक साहब, हम लोगों का ऑफिस बीकेसी में, इस वक्त हम लोग बीकेसी से आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आप बीकेसी के अंदर आएंगे ना, आप कह रहे हैं ना कि हवा जरा अच्छी हो गई है, यहाँ पर अगर आपको आएंगे आपको लगेगा, और वास्तविकता में बीकेसी में बारिश नहीं हुई है। बारिश हुई है कुछ कुछ जगह में हुई है, मुंबई के सब जगह पर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे एकदम आपके फेफड़ों में धूल जाएगी, एकदम आपका रुमाल निकलेगा, आपके मुंह के ऊपर जाएगा, या आप मास्क पहनने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए साहब, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो का जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है वो तो अलग है, और अंडरग्राउंड मेट्रो का जो काम चल रहा है वो अलग है, और उसके अलावा बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, उसके अलावा बिल्डिंग्स के रिपेयर का काम चल रहा है। मतलब ऐसे लगता है कि दैट यू हैव कम इनटू एन इन्फर्नो, कि ये तो कोई नरक में आ गए हो आप लोग। इस तरीके का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब, और साथ में सोने पे सुहागा हम लोग आरे फॉरेस्ट में और भी पेड़ काट रहे हैं, बुलेट ट्रेन के लिए हम लोग और भी पेड़ काट रहे हैं, हम लोग मैंग्रोव्स और भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहां जाएंगे हम लोग केतन नाइक साहब? कहां 10 साल के बाद कहां होगी? राज साहब ने जब भी हमारी ब्लूप्रिंट लॉन्च की थी तभी उसके साथ में जो टाइटल वीडियो था उसमें, उसको अगर आपने ठीक से देखा होगा तो उसमें उन्होंने सेंट्रल पार्क का उदाहरण दिया था न्यूयॉर्क का,
जी कि सेंट्रल पार्क किस तरीके से उस शहर के बीचों बीच है जी और उसको कंजर्व करने के लिए कैसे वहाँ की सोशल बॉडी इकट्ठा आके उसको मेंटेन करती है, उसको चलाती है, उसकी जो अलग से एक बॉडी बनी पड़ी है। तो उन्होंने बताया था उसमें कि हमारा जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा जो MMR रीजन आता है, मुंबई, ठाणे और इस सारे परिसर को बीचों बीच हमारा ये नेशनल पार्क है। जी अब इस नेशनल पार्क का उपयोग हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे सारी चीजों के लिए कैसे किया जाना था, ये बिल्कुल नहीं हुआ। उसके हमने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाने के बावजूद आज भी नेशनल पार्क की अनेक जगहों के उसके कोनों को आज भी कुरेदा जा रहा जी है, आज भी वहां पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जा रही है। जी सर ये आवाज सामने आने के बावजूद अगर इसको रोका नहीं जाता तो इसका पाप आप सत्ताधारियों के मत्थे मारोगे या नहीं? आज जो पॉल्यूशन की परिस्थिति बनी पड़ी है उसका पाप इन सत्ताधारियों के माथे पड़ना चाहिए या नहीं? तो सर ये जो सारी चीजें है ना, इनका जवाब कहीं ना कहीं अभी इनको देना पड़ेगा, और अगर ये जवाब देने के लिए असक्षम है तो जनता को इनको लात मार के भगाना होगा। Sir, in fact, I remember, Pradeep ji, sorry, just one last word, because since Ketan Naik ji has opened up a subject which is very, very close to my heart, इसके ऊपर राज ठाकरे साहब से भी डिस्कशन हुआ था। क्या है कि 30 साल पहले से इन लोगों ने जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना सर, उसका जो फॉरेस्ट है, दैट एक्चुअली गोज फ्रॉम बोरीवली राइट अप टू मुलुंद, उसमें एनक्रोचमेंट हुई। वहां पर बड़े बड़े बिल्डर, नामचीन बिल्डर्स, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंग्स बना दी, लोग वहां पे रहने भी शुरू हो गए, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल गए, ओसी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, एंड दे आर ऑल इलीगल। यहां तक के एक कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया था, डिमोलिश ऑल ऑफ देम। फिर ये लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, और उसके बाद उसको वर्कआउट किया। मेरा ये कहना है कि सर वो 20 साल पहले, 20 के 25-30 साल पहले की तब बात थी, 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, मतलब 40 साल से वहां पर सिर्फ एनक्रोचमेंट चल रहा है। तो उसके लिए आपको लगता नहीं कि जब आप सत्ता में आएंगे, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता में आएगी, मैं तो ये देखना चाहूंगा कि हमारे पर्यावरण को खत्म करने वाले, नष्ट भ्रष्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको सजा मिले, और बहुत अच्छे तरीके से सजा मिले। केतन नाइक साहब। सर बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है अगर राज साहब के हाथ में इस मुंबई की, इस महाराष्ट्र की सत्ता आती है जी, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो वो ऐसे करने वाले, ऐसी जो चीजें हो रही है उस पर पहले फुल स्टॉप लग जाएगा कि इसके आगे नहीं होगी। अभी आपको छोटा सा अगर उदाहरण दे दूं तो जो झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन का SRA का प्रकल्प होता है, उसमें जो एक साल की जो डेडलाइन होती है, जो पहले 95 थी, बाद में अभी और आगे बढ़ गई, तो ऐसी सारी जो चीजें बढ़ते बढ़ते जाती है ना सर, उस पर पहले फुल स्टॉप लगाना होगा, और वो फुल स्टॉप 100% राज साहब लगा देंगे। मुझे पता नहीं कब ये होगा और कैसे ये होगा, मेरा आत्मविश्वास तो पूरा है सर कि आने वाले समय में ये होने ही वाला है। लेकिन जैसे ही होता है तो एक फुल स्टॉप लगने के बाद एक नई शुरुआत मुंबई और महाराष्ट्र को देखने मिलेगी। एक विजनरी लीडर को कैसे एग्जीक्यूशन करते हुए देखने मिलेगा, वो पूरे महाराष्ट्र देखेगा। मुझे लगता है सर ये बहुत ही जल्द होगा, और जब होगा तो डोंके की चोट पे होगा। फैंटास्टिक। केदार नाइक जी, ये रोड स्कैम, आज आदित्य ठाकरे फिर एकदम एक्टिव हो गए कि रोड स्कैम मैंने देखो एक्सपोज किया, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड, 6080 करोड़ स्कैम। अभी सरकार फोर्स हो गए कि मेरे एलिगेशंस के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को सस्पेंड कर दिया, 5 कॉन्ट्रैक्टर क्या काम रहे। हाउ डू यू सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस कोर्ट, बिकॉज आप भी तो जुड़े हुए BMC, BST हर चीज से। क्या ये कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड एज पर टाइम तो नहीं हो पा रहा, दैट इज ट्रू, टाइम बाउंड था, बहुत सारी चीज बारिश से पहले होने वाला था, बारिश तो चला भी गया अभी विंटर। तो आदित्य ठाकरे टेकिंग क्रेडिट फॉर एक्सपोजिंग द रोड स्कैम, 6080 करोड़, कितना सच्चाई है केतन नाइक जी उसमें? सर इस विषय में और थोड़ी जानकारी लेनी होगी, क्योंकि जो मैं मुंबई में रह रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे रोड्स जिनका काम शुरू हो चुका है, अभी मैं जहां रहता हूं वहां का भी रोड का बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, साइड में खुदाई शुरू हो चुकी है, तो दिखता है कि काम शुरू हो गया। मतलब हर रोड इनको, अब मैं सर आपको बात बताऊं, मेरे यहाँ का जो रोड है सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस रोड को कंक्रीट करने की जरूरत थी। वो रोड जैसा था बहुत अच्छा था, बहुत सही था, साफ सुथरा था। अब उसको इन्होंने खोदना शुरू कर दिया, अब उसको कंक्रीट बना देंगे। कंक्रीट बनने के बाद में जो उसकी एक अलग इकोनॉमिकल प्रोसेस आ जाती है, फेरी वाले वगैरह वगैरह, वो सब हो जाएगा। तो सर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो भी रहा है तो वो कब तक खत्म करे उसको, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही समय पे पूरे मुंबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक ही समय पे शुरू हो गया है, और मुझे लगता है इसी का इंपैक्ट पॉल्यूशन, ट्रैफिक और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे भी हो रहा है।
जी। तो ये प्लानिंग बिल्कुल ना होने का नतीजा है, सोच ना होने का नतीजा है, विजन ना होने का जी। नतीजा है, और यही फिलहाल मुंबई में हो रहा है। और चलते चलते ये भी आपको याद दिला दें, इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बीएमसी से पाबंदी है, बीएमसी का बैन है, लेकिन वो एमएमआरडी के लिए काम कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट यहाँ से महाराष्ट्र के लिए ब्लैकलिस्ट काम हुई कर है और रहे वहां पे काम ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, बाकी हर जगह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नाम के लिए सर, बीएमसी में बैन है। ये सर एक सर्वपक्षीय योजना है जी। कि अगर आप बीएमसी में ब्लैकलिस्ट हो जाते हो, तो अगर बीएमसी में ब्लैकलिस्ट होने के बाद में अगर एमएमआरडी में कोई स्कोप है तो आपको वहां काम मिल जाएगा। वहां ब्लैकलिस्ट हो जाते हो तो आपको पीडब्ल्यूडी में काम मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी में ब्लैकलिस्ट हो जाते हो तो आपको महाराष्ट्र छोड़ के कहीं और काम दिला देंगे, लेकिन आपको काम दिला देंगे क्योंकि आपके उपकार है हमारे ऊपर। बट दिस इज वंडरफुल। जैसे ही बीएमसी में, और एक्चुअली ब्लैकलिस्ट ये तब हुए जब बीएमसी में इनका काम खत्म हो गया और इनको सारी पेमेंट मिल गई, उसके बाद इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और फिर एमएमआरडी का काम शुरू हो गया। आई मीन, चलिए, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज यूजुअल। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, टू योर एंटायर फैमिली, आपके पूरे परिवार को, सभी आपके दोस्तों को, सब साथियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपसे विनती करूंगा कि इस दिवाली के सीजन में एक बार आप दोनों भी, अगर शाम को अगर आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो शिवाजी पार्क जरूर आइए और उस दीपोत्सव का भी सर आनंद लीजिए। वंडरफुल। आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल साथ में ही है, बिल्कुल साथ में। साथ में, इट विल टेक अस अबाउट 10 मिनट्स, 10 के 15 मिनट लगेंगे। यस यस, लेट अस नो सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू अगेन। हैप्पी दिवाली सर। Well, that was nice. And one thing I like about the MNS, they don't mince words, and they're very sure of themselves, and they know where they stand. That's the most important thing. They say, hey, we're not big, but we are not going to leave any issues. We're going to hit on every issue that affects the common man. As Shakespeare said, he may be small, but he's mighty fierce. Yes. And afraid of nothing. And only the people who work on the ground, yes, with a clear-cut policies are going to. Well, but I'm so happy to see, Javed Akhtar Saab and Salim Khan Saab as chief guests at the Deepotsav. Really, really nice. And especially Javed Akhtar, where he said, मैं देखता हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने से कौन रोकता है? मैं बोलूँगा, क्या कर लोगे? Just like he said, भारत माता की जय। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला कि मैं भारत माता की जय ना बोलूँ? तुमने नहीं बोलना, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बोलता हूँ भारत माता की जय, क्योंकि भारत मेरी माँ है, बोलता हूँ। And that is wonderful. All right, right now to talk about a subject which is, well, not very happy, even though it is Diwali. It's our old friend Nand Kumar Pawar Sahab. Nand Kumar Pawar Sahab, namaskar. Namaskar and happy Diwali to both of you and all of us. Thank you. Wish you the Happy same Diwali and to your you family. too, sir. From the entire team at Nation Now, happy Diwali to you, Nand Kumar Pawar Sahab. Thank you, sir. So, sir, now, in spite of everything pointing to the contrary, in spite of all the evidence pointing to the fact that the stone crushers are destroying the entire environment and the ecology of all the hills in and around Amarnath, they are still working with political patronage. Is that correct, sir? Nandakumar Pawar, sir? Can't hear you. Pawar, sir, can you hear me, sir? Yeah, I can. So, in spite of all the evidence pointing to how the ecology of the entire area has been disturbed and destroyed, the stone crushers are still working with impunity. Is that correct, sir? Absolutely correct. The video itself tells the story, what is the ground reality is. Yes. Normally there are certain norms by the CPCB, MPCB to be followed by every crusher operator or stone quarry operator. As per CPCB, that is Central Pollution Control Board, the stone quarries can be operated inside 100 meters from the human habitation. Okay, provided there should not be any blasting. Whenever there is a blasting, the distance has to be maintained up to 500 meters from the human habitation. Here in this instance,
the stone quarry crusher which is being operated here in the Cooperative Wadi, Taluka Ambana, district Thane, day and night, okay, at the cost of local people's life and their health. And it has been continued from 2007 relentlessly without being bothering about the law and order. And it's being operated in the remote area where there is no absolute control. So my question to the local Tehsildar, how this quarry has been permitted, how the stone quarry crusher has been permitted to operate hardly 110 meters away from the human habitation. This is very sad and very bad. This is gross violation of every law in the country, I would say. You know, Nandakumar, Power Sahab, we can see on the footage just prakar se pollution. We can see the smog, how the smoke and all the dust is piling up and going towards the sky. And you say this is close to residential areas. Can you just briefly explain to us how is the stone crushing machine working? Because is it going into the hill and pulling out stones and crushing the stones there only? What is the procedure adopted there? Or the trucks are getting the stones and putting into the crusher? How is it operating, the stone crushing machines? Yeah, exactly. Basically, whenever there is a blasting is involved in the stone operating, quarry operating issue, there has to be minimum distance, at least 500 meter distance to be maintained. Okay, that is the guideline given by the NGT in 2020 by expert committee constituted by the NGT, that the certain distance has to be maintained, and there should not be any disturbance to the local residents. What is happening on the ground? The local resident, which is Adivasi, there is a Cooperative Wadi. All residents have developed their huge cracks in their walls. All villages have been covered with the dust. And you go around the village, you will see the how people are living in miserable condition. This is for what? What is their crime? I'm asking. This is not only the human right abuse and the environment degradation. Also, this is damaging the entire ecology in the area, as sir have said. The entire peripheral water streams and there's a river also which originates from that forest itself, which go to meet to the Ullak river after some distance. That also getting affected because even the rice paddies and the local fruits are being affected. There is no proper yield because position of pollution and the silt on the every vegetation around this area. Not only that, but also there is a reserve forest just adjacent to that quarry. In fact, the quarry has been encroached into the adjacent forest. So that is also impacting badly. But nobody bothers. And let me tell you something that the local MLA, Mr. Kisan Katore, also raised this issue in Vidhan Sabha and Lakshya Vedi to drag attention of the government to this very quarry. But nothing has happened. There are repeated complaints have been filed by the local Adivasi, the local residents, to stop this quarry, which is violation and impacting the lives of the people. But nobody bothers. Nobody wants to listen anything. So who owns the quarry? This quarry owned by the very famous builder in that area called Panvelkar Group. Okay, it's a reputed builder, so-called reputed builder. I don't know how we can afford to violate this very norms at the cost of local people's lives. This is not acceptable. And let me tell you from your source that if quarry doesn't get stopped, I will go to the court, NGT, for this. Because this cannot be tolerated. This is not acceptable. No, do they have to have some permissions, Power Sahab? Because आप कुछ भी business करते हो, आप environment को destroy कर रहे हो. There's so many government agencies involved to give clearance. क्या ये builder ने जो quarry चालू कर दिया है, क्या कोई permission उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है? Some permissions है उसके पास? परमिशन अगर होंगे भी तो परमिशन का वेरीफाई करना उनका काम है, अथॉरिटी का काम है, एमपीसीबी का काम है, तहसीलदार का काम है, कलेक्टर का काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये क्वारी ऐसी है सर कि ये कैनॉट बी परमिटेड ऑफिशियली, कैनॉट बी परमिटेड, नॉट अलाउड टू ऑपरेट इनसाइड द 110 मीटर फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन, कैनॉट बी. व्हाट अथॉरिटी इज डूइंग? But you said this has been going on since 2007. 2007 से लेकर के अभी तक चल रहा है, पिछले 16 साल से. और 16 बरस से जो वहां के आदिवासी हैं इस नरक में रह रहे हैं. कहने का मतलब ये हुआ.
बिल्कुल सर। तो मतलब के वहाँ तो हेल्थ को लेकर के दे मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ पल्मोनरी डिजीजेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ cardiac related problems, lung related problems, problems with regard to tuberculosis, silicosis, ये सब होता होगा वहाँ पे, इसका मतलब? Absolutely, there exists huge number of this kind of problems, health related issues are there, and but nobody want to do anything on that front. It's very sad actually. Why? Because they are tribals, is it? Because they are tribals and they're not a very organized and strong group. Is that it? Exactly. That is the issue. They are not organized. They are not money or muscle power to fight this battle. And the builder is dominating even the authorities. And everybody is silent on that issue. Nandakumar Pawar sahab, what we are seeing, blast happening and the dust rising from the ground and polluting the entire area out there. जो खुलेआम दिख रहा है किस प्रकार से blast हो रहा है और पूरे dust जिस प्रकार से पूरे environment को खराब कर रहा है. मुंबई में ये प्रॉब्लम था तो आई थिंक द गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन दैट जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए. अगर बिल्डिंग आप रिपेयर कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू हैव टू एनक्लोज द एंटायर एरिया. आपको पूरे एरिया को एनक्लोज करना पड़ेगा ताकि डस्ट बाहर नहीं जाए. नाउ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट, इज देयर, मगर ये तो खुलेआम और बोलते कि वो मिनिमम स्पेस भी आपने रखा है, डिस्टेंस ना रखकर खुले आम विदाउट एनी कवर यू आर ब्लास्टिंग एंड सी द डस्ट कमिंग आउट देयर. तो प्राइमा फेशी देखने से मालूम पड़ेगा पड़ रहा है कि टोटली इलीगल है, टोटल इलीगल. तो स्यू मोटो कॉग्निजेंस हैज टू बी टेकन बाय द एजेंसीज हु आर मॉनिटरिंग दिस. तो व्हिच आर द एजेंसीज सपोज्ड टू बी मॉनिटरिंग दिस, नंदकुमार जी? The agency is supposed to be the MPCB, CPCB, the forest department, okay, the local tehsildar, local collector, okay, Thane collector is supposed to be look into this matter. And thankfully, let me tell you something about the pollution issue in Mumbai. We had been to Bombay High Court yesterday, and you must be aware of the fact that the court itself has taken so moto cognizance of the pollution which is happening in the city. Something which is not expected, that Mumbai has reached to one of the second most polluted city in the world, which we Mumbaikar don't like to hear something like that. But this is the actual situation actually. There are basic norms to be complied with, okay. And thankfully the court has appointed expert committee comprises of 3 members, that one is from the NEERI, that is National Environment Engineering Research Institution, and one is from IIT Bombay, and third one is from the Forest Secretary, retired Forest Secretary. This 3-member committee will monitor pollution level on day-to-day basis, and they will report to the committee, and committee they will submit their report on weekly basis to the court as to the scale of the violation, and the steps are taken, the measures are taken to combat this kind of situation. There are certain norms, okay, they have set up by the committee that will be come up within a few days. The hearing was conducted from 2:30 to 6 o'clock. Throughout the time we were there in the court, and we heard it patiently, and let's say some good thing will come out of it. But the only thing is, Nandakumar Pawar sahab, we were expecting that the court would take strict action against all the construction sites and at least ban construction for a period of 10 or 15 days. That has not happened. Only thing that has happened is that the debris should be carried in covered trucks and all that. Usse kya hone wala, sir? I hope the courts actually take some action. Do you think the courts will take some action? Nandakumar Pawar? Court has to take some action, because there is no alternative. Okay, these kind of measures won't help actually. Covering the debris with the curtains. No, that has got. उससे क्या होने वाला है सर? क्या बात कर रहे हैं? मतलब अभी देखिए ना. Nothing much will happen. अभी देखिए साहब, कोस्टल रोड बन रही है, उसके अलावा वहाँ पे मेट्रो की अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, ओवरग्राउंड मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं. मतलब जिस एरिया में भी आप जाएं वहाँ पर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखती है, एंड यू आर ग्रीटेड बाय डस्ट क्लाउड. मतलब ये क्या है? एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, old buildings are being repaired हर जगह पे, they create their own dust. So what is going on? I mean, this is all completely and totally going out of control. Nandakumar Pawar sir. Absolutely, this is, I always keep on saying that government policies are very, very effective factor actually to decide the level of pollution, decide the lives of the citizens, okay. The government nowadays, they are focusing on the redevelopment of the project.
You see everywhere the old buildings are being demolished Yes. and the new buildings, towers are coming up with extra FSI, which is not acceptable. The city like Mumbai, which is already polluted, already overpopulated, and the vehicular traffic also huge in the world. So some kind of control has to restrict vehicles in the city. We have to restrict the redevelopment projects, because this is not something we expect to live in a city like Mumbai. नंद कुमार जी, दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है, वी नो कि farm fires is a problem, stubble burning is a problem, and because of that the entire northwest area, northern area is always Delhi हो गए, यूपी हो गए, हरियाणा हो गए, तो everybody यहाँ पर आप what is the problem where Mumbai is concerned? Why is the pollution, I said, second most polluted city in the world? What are the main reasons? Because यहाँ पर stubble burning तो होता नहीं है, farm fires तो है नहीं, तो what is still polluting the entire atmosphere out here in Mumbai? Yeah, exactly. It's a good question. Actually, I just now mentioned about the redevelopment projects which are happening throughout the Mumbai. You go anywhere, any corner of the Mumbai, you see the redevelopment projects are coming up, and there are quarries. Okay, a huge number of quarries are being operated in Pantal. And recently, you know that Uran city is supposed to be the most polluted city in India. It's followed by Nerul now. Kharghar, Nerul also not behind that. So these are all because of the Navi Mumbai airport, where the continuous blasting is happening. The marsh and the mountains are being flattened. Blasting are continuous. Apart from blasting, there are various infrastructure development projects are going on. The bridges, the roads are being constructed, and there are continuous traffic of the dumpers with carrying debris, mud and everything that fall on the road continuously and causes huge dust particles spread in the atmosphere. And thankfully, every time nature comes to our rescue. Okay, 2 days back we had good amount of rain, and that's some kind of remedy for the dust to settle down for some time. But after all, we are always rely upon the nature and not the government. This is very sad to say. बट एकनाथ शिंदे जी ने इमरजेंसी मीटिंग में कहा था कि 1000 वाटर टैंकर पूरे मुंबई रोड्स में जाएगा और फ्लश द वाटर टू कीप द डस्ट इन कंट्रोल. दैट इज व्हाट एकनाथ शिंदे जी सेड. और उन्होंने कहा कि और भी हम लोग सब बैठ के तय करेंगे कैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए. आदित्य ठाकरे आलोचना करने लगे कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दिस गवर्नमेंट शुड बी डूइंग बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो ये 1000 वाटर टैंकर रोड पे जाने से डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे पवार साहब? देखिए सर, बेसिक बात जो है कि हम पहले जख्म करते हैं, हाँ, पहले घायल करते हैं और फिर मलहम पट्टी करने की कोशिश करते हैं. अब घायल ही मत करो ना. आपको रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो जिस तरह के चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लाने की जरूरत है. आप कितने भी रेमेडीज लाओ, कर्टन्स लगाओ या फिर डेब्रिस कवर करके लेके जाओ, पोल्यूशन तो होने वाला ही है. ये काम आप कम करो. लेकिन नंद कुमार पवार साहब, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल लाओ. नंद कुमार पवार साहब, ये तो बहुत पुरानी प्रथा है मुंबई में. आपको तो याद होगा, बहुत पहले these water tankers used to go all around South Mumbai during the summer time, and they used to pour water on the road to cool down the road and to get rid of the pollution. This is a very old thing, and it was stopped, if you remember, during the 90s because of lack of water. पानी नहीं था. अब 1000 टैंकर का पानी आप कहाँ से लाएंगे? कितनी देर करेंगे उसको? आप हर रोज करेंगे क्या? मतलब where will the water come from? ये तो बताइए सर. एक तरफ बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी है और उसके ऊपर अब आप 1000 टैंकर से क्या होने वाला है पूरी मुंबई शहर का? सर नंद कुमार पवार साहब बताएं. हाँ, यही बात है ना. एक और नया कॉन्ट्रैक्ट इससे मिल जाएगा तो टैंकर्स माफिया को या पानी वालों को जो पानी सप्लाई करते हैं उनके लिए एक जरिया खुल जाएगा इनकम का. हाँ, अभी सीएम ने सोचना चाहिए ना कि ये सब रेमेडी खाली दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला. पानी की स्कैर्सिटी है. ये टाइम बारिश भी कम हुआ है मुंबई, हालांकि ठीक बारिश हुआ है, लेकिन मुंबई छोड़ के बाकी इलाकों में बारिश हुआ है भी नहीं. तो पानी कहाँ से लाओगे आप? Almost 20 to 30%. गर्मी इतनी बढ़ रही है अभी. नाउ वी आर नवंबर
winter started already. अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है, अभी आप सोचो कि फरवरी, अप्रैल, मई में क्या परिस्थिति होने वाली है, इसके बारे में हम अंदाज क्यों नहीं लगाते? हमको जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने जाते हैं क्या? That kind of mindset on the part of government and सर all of you, मैं आप सब लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं और प्रदीप जी दोनों। जैसे आप हो गए नंद कुमार पवार साहब, हमारे रोहित जोशी हो गए थाने में, स्टालिन दयानंद साहब हो गए, BNK कुमार हो गए, जोरू बथेना हो गए, और इसी प्रकार अलग अलग जितने भी लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे अफरोज शाह साहब हो गए, सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आप सब लोगों ने ये वार्निंग दी थी, अभी नहीं, बहुत साल पहले, 4 के 5 साल पहले। मुझे याद है जब चेंबूर में हम आप ही के साथ मिले थे, वेयर दैट लवली फॉरेस्ट वाज सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, वी वर देयर विद यू। देयर इज दैट, अभी वो है कि नहीं है सर? वो इज दैट फॉरेस्ट स्टिल देयर बाय द वे? Sir, forest is there, but mangroves have almost lost. Because water is still stagnant. There's the blockages. That is slowly, gradually, everything. That is terrible, because you were pointing out how all the debris is being poured into all the mangroves at that time. मैं सर ये आपने, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, ये नंद कुमार पवार साहब ने 5 साल पहले बोला था कि जिस तरीके से आप अपने पूरे वेटलैंड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मड फ्लड्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मैंग्रोव डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ना जाने कितने लाख पेड़ तो अभी तक काट चुके हैं। और उसके बाद फिर जब हमें गर्मी लगती है, सांस नहीं आता, तब हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया। नंद कुमार पवार साहब, अब ये इशू जो है, मेरा ये मानना है, ये विषय जो है, ये सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट का नहीं है, ये पूरे शहर का है। देश के जितने भी लोग हैं उन सबका है, सभी देशवासियों का है, वेरी फ्रैंकली। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा ये कहने के लिए कि हमारी हवा पानी को छोड़ दो भाई, हमारी हवा को प्रदूषित करना बंद कर दीजिए। आपको लगता नहीं है कि कोई ऐसी मूवमेंट शुरू होनी चाहिए नंद कुमार पवार साहब? सर, मूवमेंट तो शुरू होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तो काफी मतलब देर हो रही है एक्चुअली इस सब मूवमेंट में, क्योंकि कोई सुधरने का नाम तो नहीं ले रहा है जी। हर एक पैसा, हर एक को पैसा बनाना है। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर हो या फिर मिनिस्टर हो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल यही सिटी में रहना है, यही पोल्यूटेड सिटी में रहना है। तो हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हम हर अपने इंडिविजुअल तरीके से इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि कम से कम हवा तो शुद्ध मिले हमें। लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास करने की किसी की मानसिकता नहीं दिखाई देती है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रायोरिटीज इस बात पे निर्भर करता है कि शहर को खत्म करना या फिर जो रह रहे सिटीजन उनको खत्म करना है इस शहर से। नंद कुमार जी, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स रिपोर्ट है 50,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन सिटीज मैनग्रोव्स, स्पेशली वुडन। आप जैसे डिवोटेड एनवायरमेंटलिस्ट खुद जाके फिजिकली प्लास्टिक और वेस्ट को वहां से निकाल रहे मैनग्रोव से, मगर इफ द क्वांटिटी सो ह्यूज 50,000 टन्स, तो इसका सॉल्यूशन, वेयर डज द सॉल्यूशन लाई? कलेक्टिवली एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल, बिकॉज दिस डिस्ट्रक्शन इज मैसिव, इट्स ह्यूज। 50,000 टन क्या बोलते हैं? और हम लोग यही देखते हैं कि आप जैसे कमिटेड एनवायरमेंटलिस्ट खुद ग्लव्स डाल के आप जाके फिजिकली ऑल दिस वेस्ट मैंग्रोव निकाल रहे हो। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या कुछ एफर्ट हो रहा है सरकार की तरफ से, या फिर रिपोर्ट बना के बस रखे हैं? They are not that serious about the mangroves and the ecology to be maintained in healthy status. We always ready to extend our helping hand to the government. Okay, we are doing ourselves with government supposed to do. We carry out the cleanup drive on regular basis from 2007. There are tons of garbage we ourselves have removed. We at Vanashakti, at Kirai Pratishtha and the local fishing community, because we are concerned about the mangroves. The mangroves are essentially the spawning and breeding area for the fish. When the trash, plastic trash which is deposited on the mangrove area, the fishing fields are getting destroyed, and when fishing fields are destroyed, how will we get the catch? So that is our concern, and it is concern of every citizen actually. The mangroves are very important natural stuff which God has gifted us to people like people who are living in the city like Mumbai, which is a coastal city. Mangroves are very crucial, but what we are doing about it, nobody bothers.
But sir, a Switzerland-based survey on the most polluted cities in the world has shown that Mumbai is the second most polluted city in the world after Lahore. Lahore is number 1. After that, we are number 2. Isn't that a shame? I mean, मतलब लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि हम लोगों का नाम ऐसी लिस्ट में आता है. Absolutely shame. मतलब ये क्या है सर, ये बताएं ना. मतलब क्या, as you said, we are a coastal city. इतना बड़ा समंदर है. मुंबई से लेकर के अफ्रीका के कोस्ट तक कोई बिल्डिंग नहीं है साहब. ठीक है, कोई बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं है. समंदर है सर. तो पोल्यूशन तो होनी नहीं चाहिए मुंबई. मुंबई शुड बी अ पैराडाइज. व्हाट हैव वी डन? बताएं नंद कुमार पवार साहब, प्लीज. Exactly, Mumbai is a coastal city, and we are being a Mumbaiker really proud of it. Okay, the coasts are being completely exploited for the development. Okay, the coastal norms, the coastal regulation zone, that is CRZ notification, which is supposed to be protect the coast, we control the development on the coast. But what is happening about the CRZ? You know, CRZ came into force in 1991. And ever since, from last 25 years, it has been amended, diluted 25 times, always in the favor of construction being allowed on the coast. And the coast being an ecological sensitive area, we don't bother about that. Okay, you are talking about the Uran. Okay, Uran is supposed to be the most sensitive area in terms of being closer to the Arabian Sea, close to the Arabian Sea. And all ecology has been changed because of the relaxation and dilution of CRZ notification. It was earlier 500 meters, there was no any development or construction allowed. Slowly, gradually 500 meters become 200, then 100 meters, now the 50 meters. Now the government has such a mindset that they want to abolish CRZ notification. What will you remain then? And sir, let me tell you one fact about the Navi Mumbai Uran Taluka. The CZMP map, that is called cadastral map, supposed to be prepared by the local authority. Okay, from 1991 it should have been prepared. As of now, there is no agency has been recruited to do this job, although this is mandatory job on the local authority to fix a high tide line, because this is ecological sensitive area. The CRZ and high tide line is very important to protect coast. But there is no mandatory job has been done by the authority. What to say? And the matter is already in the court. The Pandey issue, all these smaller issues are related to that bigger issue, Pandey issue itself. And soon there will be one major decision will come from the court, hopefully, with the Bombay High Court. Nanda Kumar ji, ye Uran ke baat hai. You're talking about Uran. Now you're talking about the garbage and waste on the mangroves, and this is thousands and thousands of tons. Now, what should the government be doing exactly? Can the STPs alone help? Treatment? How do you control garbage? How is the garbage mixing along with the sewage and going into the mangroves? Because it's, as you said, Uran, and the entire place is so ecologically sensitive. If you are filling the whole place with garbage and plastic and tons of that, we are looking towards a total disaster to the entire 3 regions in Mumbai, Navi Mumbai, Thane. Now, what do you think the steps the government should take? STPs or nets? Or no, you are saying some simple solutions also earlier. Nandakumar ji. See, as far as STPs are concerned, they are not in sufficient amount actually of being operational. But the government is somewhat serious about setting up new STP plants to cope up the requirement of the city. They are doing it to some extent, but there is no absolutely any control on the amount of trash, biodegradable trash that is drained from the city into the mangrove area. There is no control. There are open drain system along the eastern express highway. You see there are many outlets through which there are tons of garbage, plastic trash and hazardous material being drained and flow continuously into the mangrove area. There is no control on that.
we keep writing, we keep requesting continuously to MPCB and the BMC to take seriously cognizance to stop this waste going into the mangrove area. Install some very simple solution we have already given to install net to stop trash going into the mangrove area. But they are not interested in effective simple solution. They being what you call very rich corporation, Mumbai corporation supposed to be a rich corporation in India. They are not interested in simple solution, effective solution. Simply because if you install the net, no trash can go into the mangrove area. The trash can be collected very conveniently and transported to the area where they can be treated scientifically. But Nandakumar Pawar Sahab, you must come up with a more expensive solution. Yes, because we have more money to spend. No? Yes. If you come up with a very expensive solution, it will be passed immediately. This net solution is very inexpensive and very effective. इसमें किसका क्या बनेगा सर? Exactly. That is concern of everybody actually what they'll get out of any new project that's coming up, because they are only interested in that. I can only hope we survive, because already the Honorable Court has given permission to burst firecrackers between 7 and 10. But where I stay, they burst them all night. So I hope we survive. But wishing you a very, very happy Diwali, sir. All the very best to you. Happy Diwali. Thank you. Happy Diwali. And the way you have been working is absolutely amazing. It is magnificent. Keep up the good work. You, sir. Keep up the good work, sir. We are all with you. Nandakumar Pawar sahab, namaskar. Diwali ki shubhkamnaएं. Thank you so much, sir, for opportunity and given platform to highlight the issue concern to all citizens of Mumbai, Navi Mumbai and Thane. Jai Hind, sir. Jai Hind. Vande Mataram. Jai Hind, sir. Jai Hind. Vande Mataram. Thank you. Well, that's just about it, Pradeep ji. Each time Nandakumar Pawar sahab comes up, he always reveals the extent to which we have allowed this city to degrade itself. We have degraded this city. I mean, this is terrible, absolutely terrible. और वो solution कितना simple है सर, सिर्फ नेट लगा दीजिए ना वहाँ पे, वो जो है नहीं जाएगी वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट. अब नेट कितने का आएगा? इनको कोई हाई टेक सोल्यूशन नया वाला लेके आना चाहिए था. कोई जो प्रोजेक्ट को 3,000 करोड़ 10,000 करोड़ का होता तो अभी पास भी हो जाता. I mean, this is like. I mean, at least we have these lone warriors like Nandakumar Pawar and other, taking up issues, approaching the knocking the courts of justice. And no other channel is taking it up, Pradeep. Yes, My point is, I search every other channel. And even though I am proud to say that we are taking it up, but we are a very small channel. What about the rest of the guys? What are they doing? All the mainstream media channels run by huge corporate houses. Where will all this money go? ये इतना पैसा इनके पास आएगा, जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा साहब? एक बार आपका शेयर खत्म हो गया, फिर आप क्या करेंगे? It reflects on leadership, sincerity, and taking stands on important decisions for saving the environment. Till now, probably environment is not an issue. Though Prime Minister Modi has always been saying that we need to take care of our environment, save Mother Earth, save our ecology, but it's not trickling down to the lowest level. सर, भारत माता की जय कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी आपकी भारत माता है ना? बिल्कुल. जहाँ पर आप गंदगी फैला रहे हैं, कितना मलबा आप डाल रहे हैं. What did B.N. Kumar say yesterday? 30 million liters of untreated waste was going directly into the ocean. I mean, come on. What are we guys doing? But we assure you, as far as we are concerned, this channel will continue to take up these issues, will continue to fight for the environment of Mumbai, Thane, Navi Mumbai, rest of Maharashtra and India, and we shall continue to fight to save our city. I hope you will join us. I hope you will support us in this fight, because it's your fight, not just ours. And the beach swim that you go to, be careful. That's not a right swim in the beach. You are destroying yourself. You'll be swimming in the gutter. That's it. You'll be swimming in the sewer. Right, and before we go, I think we have some comments. There are 2 or 3 responses that have come. Let's take a look at them. In the meantime, you can please subscribe to the channel, like it, share it. That'll be very nice. Aap channel ko subscribe kare. I think we've got a few responses. Let's take a look at what people say.
There it is. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Right? Ali Darwala साहब जब पहले पिछली बार आए थे तब Pure Jingoism, Sam JT9CF. He doesn't like Darwala साहब. चलिए साहब आगे. This was Nasser Hussain साहब. Congress very useless fellows, nothing done to poor, only interested in corruption. Rahul enjoying Modi ji thinning for nation. Thinning for nation. Everyone must understand and vote for BJP. That's what Satya Narayan Pola 607 says. He does not like the Congress or Mr. Rahul Gandhi. Again from Mr. Nasser Hussain. The same. ये तो वही है भाई. This is the same. And again, Mr. Ali, what nonsense BJP person is talking? Raj Munnu Swami 675. Right? Thank you very much. Swami. Mr. Raj Munnu Swami, please do keep sending in your responses and we shall be more than glad to read them out right here. आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करता हो. सब्सक्राइब जरूर करें and do support us in saving our city. Mumbai, Thane, Navi Mumbai, they need to be saved. And I'm really telling you, in another 10 years, they'll be unlivable otherwise. यहाँ पर कोई जी नहीं सकेगा. आपको अपना ऑक्सीजन टैंक अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, आप जहाँ भी जाते हैं. याद रख लीजिए. क्या है प्रदीप जी, कोविड के दौरान जो 2 साल थे ना, at that time Mumbai's environment recovered, क्योंकि सब कुछ बंद था. हो सकता है कि एक बार फिर वैसे ही हर चीज के ऊपर बैन लगाना पड़े. लॉकडाउन होगा, फिर क्या करोगे? क्योंकि जो एयर क्वालिटी अभी है ना मुंबई की, वेरी शॉर्टली इट विल बिकम लाइक अ गैस चेंबर. It's already gas chamber. The morning walks are not a morning walks anymore. It's morning not walk safe. is the worst for your health. You get the most polluted, as they say. The most polluted is the morning walk. That's right. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself and the rest of the nation now team. आप सब लोगों को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं सभी लोगों को. फिलहाल जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.